सर स्टार्ट करिए। ले आओ जाके। 10 मिनट रुक जाओ। हाँ सचिन जी, स्टार्ट किया जाए। यस सर, यस सर। आई सी एस राजेश अरोड़ा, वेलकम। आई राइस सर, आपकी आवाज अरुण, आ रही है आपको आवाज मेरी? मेरे को आपकी आवाज आ रही है राजेश जी? अरुण सर, आप स्टार्ट कर दीजिए। राजेश सर का शायद नेट का कोई इशू आ गया है। कर दे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम अशोक जी। Myself Arun Kumar Gupta, Deputy Convener of this study circle, Northeast Study Circle. Welcome you all in virtual QCP our program. We have on overview of section 194R of the Income Tax Act. Speaker is Mr. Sachin Sinha ji, renowned speaker. He has also accepted requested, and he was also in interested in section 194S as well. So he will deliver on section 194S as well. Two sections will be covered, 194R and 194S. So the latest hot topic है किस पे कटेगा, TDS किस पे नहीं कटेगा, एम्प्लॉयर बहुतों को कंफ्यूजन है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन सचिन जी दोनों ले रहे हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन से TDS कटेगा, ये सब बहुत सारे कंसेप्ट, वो बेसिक कंसेप्ट है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को TDS कटेगा नहीं कटेगा वो भी सब चीजें सचिन जी क्लियर करेंगे। तो वी रिक्वेस्ट सचिन जी to requested, and he is very sportsman in that. In the session, Sachin ji have already spoken in various time in our seminar. He is fellow member having 20 years of experience. He is a partner of Prakash Sachin and Company and experience in taxation, domestic and international taxation and management consultancy. He is associated with the Chamber of Tax Consultants. He has delivered more than 300. I think it should be now 400. Sachin ji, am I right? यस And सर। also as on the topic of domestic and taxation and many articles. He is a member of study group of Direct Tax Committee and International Tax Committee of ICI. अपने स्टडी सर्कल का नंबर भी मान लेते हैं, ताकि कर सकते हैं। He is a special MIT in the study group of International Tax Committee of INIT of ICI. There is a third workshop on ICI on the topic of tax audit basis of property establishment and book on issue of form 15 CA and CB. Now I will request, already it is 9 minutes past 5. I will request Sachin ji to start his deliberation. There is a online bouquet, webinar में online bouquet Sachin ji के लिए, and I will वेलकम सचिन जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। राजेश अरोड़ा जी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी टेक्निकल, तो हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम आज। ठीक है सर, ओके कंटिन्यू सर, बहुत बढ़िया। सचिन जी प्लीज। सचिन स्टार्ट कीजिए सर। यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, वेलकम। I am very much thankful to Northeast CP Study Circle for inviting me to present my views on Section 194R and also requested to touch upon some on 194S. So at the outset, I'd like to thanks to Rajesh Aroda sir, the convener of the CP Study Circle, Deputy Convener Arun sir and Devendra sir ji. So the topic which is given to me is 194R, and I feel that since the budget was read by the finance minister, till now, the lot of seminar and webinar has already taken place on this topic. So I think starting with 20,000 पे applicable होगा, इसके ऊपर लगेगा, उसके ऊपर नहीं लगेगा, ये सब already discuss हो चुका है। हम लोग issues पे discuss करेंगे, practical issues क्या है और उसका solution क्या है, क्या क्या challenges अभी आने वाले हैं और वो challenges किसके किसके ऊपर applicable होंगे।
जनरली अगर मैं एक बात कहूँ तो ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट सभी के ऊपर अप्लीकेबल होता है, चाहे वो छोटे क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हो या बड़े क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हो, ये सभी के ऊपर अप्लीकेबल होगा, चाहे वो छोटे ट्रांजेक्शन को डील करते होंगे या बड़े ट्रांजेक्शन को डील करते होंगे। तो इसलिए हम लोग को इसको थोड़े अच्छे से समझने की जरूरत है और हर एक वर्ड में इसके कैच पॉइंट है, वो कैच पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम साथ साथ में भी ले सकते हैं और एट द एंड भी ले सकते हैं, जैसे जैसे सचिन सर इसके रिगार्डिंग पूछना चाह रहा था, जैसे क्वेश्चन साथ साथ में लेंगे, अगर कोई पार्टिसिपेंट रेज हैंड करता है तो एज ए पैनलिस्ट उसको मैं अटेंड करा दूं, आप विद योर परमिशन? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। करा लीजिए So तो it is request to all participants, those who want to interact with the speaker sir, so raise the hand, we will make you as a panelist. बिल्कुल सर, क्योंकि टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन हो, सिर्फ वन साइड लेक्चर की तरह ये नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको सर एक पीपीटी मैंने बनाया है, मैं उसको पहले आप लोग से शेयर कर लेता हूँ सो दैट कि हम लोग सब लोग एक पेज पे रहें जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको। विजिबल है ना सर? Yes sir. सो सेक्शन 194R नया इंट्रोड्यूस हुआ फाइनेंस एक्ट 2022 से, आर और एस। अगर आप देखेंगे तो अभी हम लोग आर एस पे पहुंच गए, अब आगे ज्यादा बचा नहीं है अल्फाबेट, वो भी कवर हो जाएगा थोड़े टाइम में अगर यही गवर्नमेंट इस तरह से चलती रही तो। और फिर नया सेक्शन ZA ZB करके हमें फिर पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम सर्विस टैक्स में पढ़ते थे। तो 194R का जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, सबसेक्शन 1, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनी टू अ रेसिडेंट एनी बेनिफिट और परक्विजिट। सो नॉर्मल जो टीडीएस का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू अ रेसिडेंट चार्जेबल टू टैक्स। यहाँ पे जो चैलेंज जो डिफरेंस है वो ये है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेसिडेंट एनी बेनिफिट और परक्विजिट। सो एनी पर्सन, ये हाईलाइट जितने भी अंडरलाइन किए हुए हर एक वर्ड के ऊपर हम लोग रुक के डिस्कस करेंगे। एनी पर्सन में पर्सन का मतलब हुआ जो टू अंडर ब्रैकेट 31 में डिफाइन किया। सो पर्सन मींस इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, फर्म, वो सारे ही कवर होंगे उसमें। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, इसका मतलब वो जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने के लिए, किसको? टू अ रेसिडेंट एनी बेनिफिट और परक्विजिट। व्हाट इज बेनिफिट, व्हाट इज परक्विजिट, क्या ये टर्म कहीं पर डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया है, या इस सेक्शन में कहीं डिफाइन किया गया है, इसके पहले कहीं डिफाइन किया गया है, किसी कोर्ट रूलिंग में डिफाइन किया गया है, हम लोग वो भी अभी डिस्कस करेंगे। कॉमा वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। सो वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बेनिफिट और परक्विजिट है, इसका दो मीनिंग निकल सकता है। पहला कि वो जो बेनिफिट और परक्विजिट दिया जा रहा है वो मनी में तो नहीं है, तभी उसको कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, चाहे वो कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो तय है कि वो मनी में नहीं है। दूसरा व्यू ये निकलता है कि नहीं, जो मनी में है उसको कन्वर्ट करने के लिए क्यों बोला जाएगा, तो ऑलरेडी जो मनी को भी इंक्लूड किया गया है। अगर मनी में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर मनी में नहीं है तो फिर कन्वर्टेबल है या नहीं है उसकी बात कर रहा है। तो दो व्यू है, दोनों व्यू में जो पहला व्यू है जो हमने बोला कि कन्वर्टेबल इनटू मनी के पहले ये आ रहा है कि ये मनी में नहीं है तभी ये कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। तो आपको याद होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का 404 ITR 1, जिसमें इन्होंने ये बोला कि जो बेनिफिट और परक्विजिट है दैट कैन नॉट बी इन कैश, सो मनी में नहीं हो सकता। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, लेकिन इनका जो लैंग्वेज है, जो क्लॉज 1 है, उसको पढ़ के तो ये समझ में आता है वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट का मतलब ये हुआ कि ये तो पक्का है कि ये मनी में नहीं है, तभी ये बोला जा रहा है कि कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, उससे कोई मतलब नहीं है, ये कवर है इसमें। लेकिन जब मैं प्रोवाइजो क्लॉज पढ़ूंगा तो इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो उसके ऊपर अलग से डिस्कस करेंगे। वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, कॉमा, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। इसका मतलब ये बिजनेस से अराइज होना चाहिए। किसका बिजनेस होना चाहिए? देने वाले का बिजनेस होना चाहिए या लेने वाले का बिजनेस होना चाहिए? सो अगर इसका लैंग्वेज देखेंगे तो ये निकल के आता है अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस। इसका मतलब जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसका बिजनेस होना चाहिए। अब बिजनेस होना चाहिए या वो कोई प्रोफेशन को एक्सरसाइज कर रहा हो। बिजनेस होना चाहिए का मतलब क्या हुआ? क्या हम ये कह सकते हैं कि उसका इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल होना चाहिए, या अगर उसका इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो क्या होगा? क्या ये जो उसको मिल रहा है जो अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस है, क्या ये भी बिजनेस के हेड में टैक्स होना चाहिए या इसका बिजनेस के हेड में टैक्स होना जरूरी नहीं है? इसका मतलब इससे दो पॉइंट निकल के आ रहा है। पहला चीज,
अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस, जो ये बेनिफिट और परक्विजिट है वो तो आपके बिजनेस से अराइज हुआ है, चाहे वो बेनिफिट और परक्विजिट आपके बिजनेस के हेड में टैक्सेबल हो या ना हो, पहला सिचुएशन। दूसरा, अब जैसे ये कहते हैं अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस, तो क्या उस एसएससी का यानी कि जो रिसीवर है, क्या उसका कोई बिजनेस होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर बिजनेस है तो क्या उसका इनकम बिजनेस के हेड में टैक्सेबल होना चाहिए, अगर बिजनेस के हेड में टैक्सेबल नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, किसका किसका बिजनेस होना चाहिए, तो जो जो रिसीवर है, रिसीवर के बिजनेस की बात कर रहा है, इसलिए इन्होंने बाद में ऐड किया बाय सच रेसिडेंट, वो रेसिडेंट बिजनेस या कैरी कर रहा हो या एक प्रोफेशन को एक्सरसाइज कर रहा हो। ऊपर भी इन्होंने बोला है प्रोवाइडिंग टू अ रेसिडेंट, इसका मतलब कोई भी पर्सन जो किसी रेसिडेंट को दे रहा है, वो रेसिडेंट बिजनेस कैरी कर रहा है, और ये जो अराइज हुआ है बेनिफिट और परक्विजिट, वो उसी बिजनेस से अराइज हुआ है। अगर ये उसी बिजनेस से अराइज हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनकम 190, ये जो रेसिट है ये 194 आर में कवर होगा। अभी हम इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं कि ये इनकम है या नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने एफएक्यू जो निकाला सर्कुलर में, उसमें इन्होंने पहले बार में क्लैरिफाई कर दिया कि चाहे वो इनकम उसके 128(4) में टैक्स हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, 194 आर कैन बी अप्लीकेबल। अब दूसरा सिचुएशन ये निकल के आता है, अगर वो आइटम 28(4) में टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो फिर वो कहाँ टैक्स हो रहा है, क्या वो कहीं भी टैक्स नहीं हो रहा है, अगर वो इनकम कहीं भी टैक्स नहीं हो रहा है तो क्या उसके ऊपर टीडीएस काटना जायज होगा। क्योंकि अगर मैं टीडीएस का जो जो जेनरेटिंग सेक्शन है, जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है, अगर मैं वहां तक जाऊं तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि इनकम चार्जेबल होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, टोटल इनकम का पार्ट होना चाहिए और उस एसएससी का होना चाहिए। ये 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो 4(1) के हैं। उसके बाद 4(2) आता है। 4(2) ये कहता है कि जो 4(1) में मैंने बोला है, अगर वो चीज है तो आपको टीडीएस काटना है या टीसीएस कलेक्ट करना है, दो चीजें बोली गई उसमें। तो टीडीएस काटने का जो जो चैप्टर 17B है, उसका जो ओरिजिनेशन हो रहा है वो 4(2) से हो रहा है। अगर 4(2) में ये कहता है कि सम चार्जेबल टू टैक्स होना चाहिए, अगर मेरा सम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है तो भी क्या मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा। अगर मैं सेक्शन 195 पढ़ता हूँ, जो अपने आप में एक सेपरेट सेक्शन की तरह हम लोग काउंट करते हैं, उस केस में वो ये कहते हैं एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर making payment to a non-resident, not being a company or to a foreign company and sum chargeable to tax, तो वहां पे भी उन्होंने बोला कि if the sum is chargeable to tax तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और ऐसे ही सभी सेक्शन में है, 194 के सीरीज में भी सभी सेक्शन में है, एक्सेप्ट 194(n), जिसमें कि सेक्शन ही ये है कि आप अगर मनी विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से तो उसका टीडीएस डिडक्ट होगा, हालांकि उसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली 194 आर में इन्होंने ये बोला कि अगर कोरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट या परक्विजिट 28(4) में नहीं भी टैक्सेबल हो रहा है तो भी ये 194 आर का पार्ट बनेगा। सो 194 आर को हम सेपरेट टेस्ट करेंगे और 28(4) को सेपरेट टेस्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाय सच रेसिडेंट कॉमा शैल कॉमा बिफोर प्रोवाइडिंग, इसका मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग, उसी के साथ इसको लिंक करना है। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विजिट एंश्योर दैट द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। सो यहाँ पे जो पेयर है, जो गिवर ऑफ द गिफ्ट है, उसको टीडीएस काटने के लिए नहीं बोल रहा है, उसको ये कह रहा है कि आपको एंश्योर करना है कि टीडीएस डिडक्ट हो गया है। ये भी नहीं बोला कि वो डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, उसको सिर्फ ये एंश्योर करना है कि टैक्स डिडक्ट हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बेनिफिट और परक्विजिट। किस रेट से डिडक्ट हुआ है? एट द रेट ऑफ 10%। किस वैल्यू पर डिडक्ट हुआ है? जो सामान आप दे रहे हैं, जो सामान दे रहे हैं या जो सर्विस दे रहे हैं या जो बेनिफिट और परक्विजिट दे रहे हैं। इसका मतलब जो गिवर है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ इतना ही है कि उसको इंश्योर कर लेना है कि इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि जब मैं किसी को कोई सामान दे रहा हूँ तो इस पे डिडक्शन कैसे होगा? कोई पैसा दे रहा हूँ तो उसमें से काट के पैसा दे सकता हूँ, लेकिन कोई सामान दे रहा हूँ, किसी को कोई कार दे रहा हूँ तो मैं कैसे उसमें से काट के कार दूंगा? डिडक्शन, यहाँ पे इनको ये वर्ड करना चाहिए था, डिडक्टेड और पेड।
बट उन्होंने बोला डिडक्टेड। तो डिडक्टेड का मतलब ये, अगर मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करूं तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ये अश्योर करना है कि ये डिडक्टेड, जो डिडक्शन हुआ है, जो जो चाहे पेयर ने अपने आप ही किया हो या पेई ने किया हो। अब वो सिचुएशन कैसे बनेगा जहाँ पे पेयर भी कर सकता है, पेई भी कर सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो 194 का जितना भी सीरीज पढ़ा है उसमें यही कहते हैं कि इट इज द पेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट द टैक्स एंड डिपॉजिट द टैक्स बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। और अगर वो फेल हो जाता है तो 40 AIA में उसका डिसअलाउंस भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि इंश्योर करना है दैट द बेनिफिट दैट द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। तो इनको सिर्फ इंश्योर करना है कि टैक्स आपका डिडक्ट हो गया है, और उसके बाद उसका वैल्यू किस वैल्यू पे हुआ वो वैल्यूएशन का भी इन्होंने बताया है। हम लोग उसके ऊपर भी अलग से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो ज्यादा कुछ चैलेंज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट shall ensure that the tax has been deducted। डिपॉजिट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिडक्ट करना है। अब आते हैं प्रोवाइजो क्लॉज में, क्योंकि ये सिचुएशन अभी हमने डिस्कस किया था कि अभी ऊपर बोला वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। तो कन्वर्टेबल क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए मैं किसी को, देवेंद्र जी किसी को मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें से कैसे डिडक्ट करें? क्या उसको जिसको मिल रहा है वो क्या कैसे उसका वैल्यू करें? वो कहता है जिसको कन्वर्ट कर लो आप मनी में। कहता है मैं मनी में तो कन्वर्ट नहीं कर सकता। मतलब कोई बात नहीं, आप नहीं भी कर सकते, उसका एक वैल्यू तो होगा। सो इसका मतलब ये होगा कि कोई कुछ बेनिफिट, सपोज कीजिए देवेंद्र जी ने किसी को मोबाइल गिफ्ट किया और उसने आगे उसको बेच लिया और उसको मनी में कन्वर्ट कर लिया, या इन्होंने जो सामान दिया वो उसके खुद के यूज करने के लिए तो था, लेकिन वो आगे ट्रांसफरेबल नहीं था, तो वो किसी को दे नहीं सकता, वो कन्वर्ट नहीं कर सकता मनी में, तो वो उसके पास ही रह गया। तो चाहे वो कन्वर्टेबल इनटू मनी हो या ना हो, इसको मैंने आपको डिस्कस किया अभी कि अगर वो मनी में होगा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का 404/404 ITR 1 अप्लीकेबल होगा। तो अगर वो होगा तो हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे इसको? दूसरा जो इन्होंने प्रोवाइजो क्लॉज बोला, प्रोवाइजो क्लॉज में बहुत अच्छे से इन्होंने बोला दैट इन अ केस वेयर द बेनिफिट और परक्विजिट इज होली इन काइंड और पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड। इसको पढ़ के ये समझ में आता है या तो ये होली इन काइंड होगा या फिर पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड होगा, बट ये पार्टली इन कैश तो नहीं हो सकता। ये तो समझ में आता है, लेकिन इसका दूसरा व्यू भी निकल के आता है। दूसरा थॉट ये निकल के आता है कि नहीं, अगर वो इन कैश होगा, अगर वो फुल्ली इन कैश है, देन इस प्रोवाइजो क्लॉज का एप्लीकेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब वो तो फुल्ली इन कैश है, तो फिर आप उसके ऊपर डिडक्ट करके जमा करा दो, क्योंकि पहले ही बोला गया वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, और अगर वो ऑलरेडी मनी में है देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा सिचुएशन निकल के आता है कि अगर यहाँ पे बोला गया है होली इन काइंड और पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड, इसका मतलब ये भी बोल रहे हैं कि नहीं कैश में नहीं हो सकता, फुल्ली कैश में नहीं हो सकता। लेकिन दो व्यू निकल के आते हैं इसमें। लेकिन अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के जजमेंट को रेस्पेक्ट देके आगे बढ़ता हूँ तो मैं ये बोलूंगा कि इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। दूसरा चीज जो डिस्कशन से भी निकल गया है कि नहीं, जब इन्होंने प्रोवाइजो क्लॉज में ये कह दिया है ऑलरेडी कि होली इन कैश, पार्टली इन कैश और पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड, तो इसका मतलब ये कहना जा रहा है कि आपका कैश में भी हो सकता है। मेन सेक्शन 194R जो मेन सेक्शन है उसका स्कोप को आप प्रोवाइजो क्लॉज के थ्रू एनलार्ज कर सकते हैं। सो द आंसर इज नो। प्रोवाइजो क्लॉज के थ्रू आप उसके स्कोप को रेस्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके स्कोप को एनलार्ज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्रोवाइजो क्लॉज के मेन सेक्शन को प्रोवाइजो क्लॉज के थ्रू स्कोप को एनलार्ज करने की कोशिश किया है। तो फिलहाल समझने के लिए, अगर पूरा कैश में है तब तो कोई इशू नहीं है। अगर पार्टली कैश, पार्टली इन काइंड और फुल्ली इन काइंड है तो, और जितना कैश में है वो सफिशिएंट नहीं है जितना टैक्स जमा करना है, देन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट, यानी कि गिवर के लिए बोल रहा है, बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट। अब यहां से समझिएगा सर, जो गिवर है उसको कह रहा है कि बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट ensure the tax is required to be deducted has been paid, जबकि पहले वाले में इन्होंने बोला था कि tax has been deducted, ensure that the tax has been deducted। यहाँ आकर ये कह रहे हैं ensure that tax is required to be deducted has been paid, जो डिडक्ट होना चाहिए था वो पेड हो गया in respect of the benefit or purpose। इसका मतलब दोनों सेक्शन में
आप अलग अलग चीज बोल रहे हो और स्कोप को आप बढ़ा रहे हो। पहले स्कोप में आप पहले सेक्शन में आपने बोला था कि आपको सिर्फ इंश्योर करना है, सेकंड में प्रोविजो क्लॉज में आप आके कहते हो कि आपको इंश्योर तो करना ही करना है, साथ में किसी का इंश्योरेंस करना है, इंश्योर दैट द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड हैज बीन पेड। तो पेड कब होगा? जब वो डिडक्ट होगा तभी पेड होगा। अब यहाँ पे ये नहीं बोला इन्होंने कि पेड बाय होम। सो क्या पेयर भी पे कर सकता है और पेई भी पे, सॉरी रिसीवर भी पे कर सकता है और गिवर भी पे कर सकता है? जनरली हम लोग ने जो 194 आर के 194 की सीरीज है वो सारे ये कहते हैं एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल मेकिंग पेमेंट to any sum which is chargeable to tax to a resident, then before making payment or at the time of making payment or credit whichever earlier deduct and deposit the tax to the government account। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला, वहां पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीज कर दी कि जो पेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ पे इन्होंने बोला ensure that tax required to be deducted and has been paid। so पेमेंट हो गया उसका, आपको ये इंश्योर करना है। पेमेंट किसने किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमिंग टू नेक्स्ट, जो प्रोवाइडेड फर्दर कि एग्रीगेट वैल्यू की बात कर रहा है कि हमारे पूरे साल का, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 20,000 का वैल्यू होना चाहिए। सो 20,000 से अगर कम का वैल्यू है देन दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। सो एक सिचुएशन निकल के आता है कि अगर चूंकि ये सेक्शन 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हुआ है और फाइनेंशियल ईयर अगर मैं काउंट करता हूँ तो मैं काउंट करूंगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। अगर ये मेरा ब्रैकेट है फाइनेंशियल ईयर का तो मैं कैसे काउंट करूंगा? जैसे हम लोग 194 क्यू में भी हमने काफी डिस्कस किया था इसको, कि जो पहले हो चुका है और जो बाद में हो रहा है उसको ऐड करना है। अगर ये टोटल एक्सीड कर जाता है 20 को देन इट इज ओके। सो पहले अगर आपने 15 का किया है, बाद में 10 का किया तो 25 हो गया, तो यस इट इज अप्लीकेबल बट ओनली ऑन 10, ओनली ऑन 10। दूसरा सिचुएशन है कि आपने पहले 5 का किया बाद में 25 का किया तो यस 25 पे लगेगा, सो जो बाद में एप्लीकेबल होगा। तीसरा सिचुएशन है पहले आपने 50 किया बाद में सिर्फ 10 किया तो भी पूरे साल में कवर होगा। चौथा सिचुएशन है पहले आपने कुछ नहीं किया बाद में सारा किया तो बाद वाले पे एप्लीकेबल होगा। छठा सिचुएशन है पहले कुछ नहीं किया, सॉरी पहले आपने 50 कर दिया बाद में कुछ नहीं किया तो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड जब से ये लॉ इफेक्टिव होगा मैंने कुछ नहीं दिया। अगर कुछ नहीं दिया तो चाहे मैंने इसके पहले देव देखना अपना सिस्टम डाउन हुआ, उनका डाउन हो गया। देवेंद्र कहाँ हो? देखो सिस्टम उनका हेलो अरुण सर, आवाज़ आ रही है मेरी? ये आप सर का बात करो ना एक बार। हाँ मैं बात करता हूँ। सर का सिस्टम डाउन हो गया था, लाइट वाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। बात करो सर से।
सर आई एम सो सॉरी थोड़ा नेट का इशू हुआ था. No problem, sir. Continue. ठीक है सर, तो हम लोग एक बार देवेंद्र जी मुझे हेल्प कर देंगे कि हम लोग कहाँ पे थे, कहाँ तक ऑडिबल था मैं. अरुण सर एक बार बता देंगे. एक्चुअली मैंने भी एक फ्यू मिनट्स का वही ब्रेक लिया था उस वक्त ही जब ये एडमिट के लिए से आया. अरुण सर आप म्यूट पे हैं. हाँ, इस स्लाइड पे थे सर आप. ठीक है सर. तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि इंडिविजुअल जो एनी पर्सन है, स्टार्टिंग में जो वर्ड था एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, एनी पर्सन मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, फॉर्म, जो भी होगा सारे लिस्ट में आएंगे. इन्होंने बोला कि इसमें से मैं इंडिविजुअल और एचयूएफ को रिलैक्सेशन दे देता हूँ. वो रिलैक्सेशन कैसे दे रहे हैं? अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है और वो अपना बिजनेस कैरी कर रहा है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, तो कहते हैं उसको इस सेक्शन में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है और वो अपना प्रोफेशन कैरी कर रहा है, उसका टर्नओवर 50 लाख से कम है, तो उसको इस सेक्शन में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. वो 1 करोड़ और 50 लाख हम कब टेस्ट करेंगे? प्रीसीडिंग ईयर में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में हमें टेस्ट करना है. तो इसके बाद इन्होंने बोला कि सब सेक्शन 2, 3, जिसमें इन्होंने ये बोला कि अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो हम आपके लिए गाइडलाइन लेकर आएंगे. अब डिफिकल्टी किसको होगी, कब होगी और कैसे वो बताएगा कि मुझे डिफिकल्टी है, वो इन्होंने उसमें कुछ नहीं बोला. तो कहते हैं अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो हम आपके लिए गाइडलाइन लेकर आएंगे. लेकिन ये गाइडलाइन लेकर उसके पहले ही आ गए, इसके पहले कि सेक्शन एप्लीकेबल होता है, ये पहले लेकर आए. और मुझे ऐसा लगता है कि वो डिफिकल्टी को दूर करने के लिए जिसको लाया गया था उसने ज्यादा डिफिकल्टी अराइज की है. तो जो चैलेंजेस हैं हम लोग वो भी एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ में. अभी देखिए हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग? कब ये बोला जाएगा कि देवेंद्र जी रिस्पॉन्सिबल है किसी को बेनिफिट देने के लिए? सो देवेंद्र जी रिस्पॉन्सिबल है किसी को बेनिफिट देने के लिए, कब बोला जाएगा? लेकिन जब ये पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, तो जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड किया है वो कहते हैं द एक्सप्रेशन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग. अब इन्होंने जो बताया है वो बताया पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मींस पर्सन प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट. जो वो गिफ्ट जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है वही पर्सन है. अगर कोई कंपनी है तो उसका प्रिंसिपल ऑफिसर. ये तो वो सिचुएशन हो गई कि जिसने दिया है वही है पर्सन. लेकिन वो वही देने वाला पर्सन है, कैसे पता चलेगा? अगर देवेंद्र जी के बिहाफ में देवेंद्र जी ने मुझे बोला कि सचिन जी आप जा रहे हो तो अरुण जी को ये गिफ्ट, ये बेनिफिट ये मैं भेज रहा हूँ, ये उनको गिफ्ट दे देना. मैं लेकर चला गया तो क्या मैं हो गया ये पर्सन देने वाला? बिकॉज द पर्सन प्रोवाइडिंग का मतलब क्या हुआ? गिवर और जिसने एक्चुअली में प्रोवाइड कराया. क्योंकि मैं तो सिर्फ गिवर हूं, उन्होंने दिया मैंने आगे दे दिया, मैं तो सिर्फ कैरिंग पर्सन हूं. अगर प्रोवाइडर तो वो है, तो पर्सन प्रोवाइडिंग एक्चुअली प्रोवाइड जो कर रहा है वो पर्सन होगा. अब एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है कि अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस. अब बिजनेस का मतलब क्या है? यहाँ पे रिसीवर और गिवर दोनों का बिजनेस होना जरूरी है, या सिर्फ रिसीवर का होना जरूरी है, या सिर्फ गिवर का होना जरूरी है. सो जो लैंग्वेज है वो ये कहता है अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस. किसका बिजनेस? किसका बिजनेस? तो कहता है जो बिजनेस प्रोफेशन एक्सरसाइज किया जा रहा है बाय सच रेसिडेंट. सो फॉर एग्जांपल देवेंद्र जी इज आल्सो इन प्रैक्टिस एंड ही इज एक्सरसाइजिंग हिज प्रोफेशन. मैं अपना प्रोफेशन कैरी कर रहा हूँ, मैं भी सेम प्रोफेशन में हूँ, और विद ड्यू रिगार्ड मैं देवेंद्र जी को कोई गिफ्ट करना चाहता हूँ जिसका वैल्यू 20,000 से ऊपर है. क्या वो सिचुएशन यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा? एनी व्यू ऑन दिस? अगर कोई आंसर हो तो आप साथ साथ में लिख सकते हैं, सो दैट हम करते हैं. तो यहाँ पे दोनों पर्सन बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं, मैं भी अपना प्रोफेशन कैरी कर रहा हूँ. तो द आंसर पूनम मैडम ने कहा कि यस वो सिचुएशन को कवर करेंगे. रश्मि मैम ने कहा है कि उस सिचुएशन को कवर करेंगे.
और कोई व्यू है इसमें? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हमें ये क्लैरिफाई हो जाए कि किसके ऊपर ये अप्लीकेबल हो जाए, तो हम अपने क्लाइंट को प्रॉपरली एडवाइस कर सकते हैं कि आपके ऊपर कभी अप्लीकेबल होगा, कब नहीं होगा। तो अभी तक 2 इनपुट आए, दोनों ने यस कहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देवेंद्र जी भी प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं, मैं भी प्रोफेशन कैरी कर रहा हूँ, और मैं देवेंद्र जी को कोई गिफ्ट दे रहा हूँ जिसका वैल्यू 20,000 से ऊपर है। क्या मेरा और देवेंद्र जी का कोई चेंज होता है? या देवेंद्र जी और मैं रेगुलर बिजनेस में इन्वॉल्व है, दोनों अपने अपने लाइन में बिजनेस कर रहे हैं, तब भी ये कवर होगा। अगर अपने एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं जहां मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा कोई एक्सचेंज ऑफ असाइनमेंट नहीं होता, हमारा कोई एक्सचेंज ऑफ वर्क नहीं होता, और ना ही मैं उनसे कुछ काम लेता हूँ, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं उनको गिफ्ट कर रहा हूँ, देन दैट इज नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस। सो अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस का मतलब दोनों का बिजनेस कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा तो फिर ये अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस नहीं कहा जा सकता। सो फॉर एग्जाम्पल, देवेंद्र जी का कोई क्लाइंट है जो कि इंडिया के बाहर रहता है, और देवेंद्र जी ने उसको कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी। अब देवेंद्र जी ने उनको फीस के लिए कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा, लेकिन जब वो वापस इंडिया आए 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो वो देवेंद्र जी को यहाँ पे आके उन्होंने मोबाइल फोन खरीद के गिफ्ट कर दिया, या इनके लिए वो लेकर आए वहां से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो देवेंद्र जी को गिफ्ट मिला है, ये वाला इसमें कवर होगा 194 आर में? सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो देवेंद्र जी ने फीस तो लिया नहीं और उनको गिफ्ट मिल गया, तो ये कह सकते हैं कि भाई ये तो उन्होंने फीस को इसलिए छोड़ा था कि गिफ्ट में ले लेंगे। एक सिचुएशन बन सकता है ये। दूसरा, देवेंद्र जी कह सकते हैं भाई मैं तो फीस भूल चुका था, मुझे तो पता नहीं था इसे फीस लेना, ये तो गिफ्ट मुझे बाय चांस मिल गया। लेकिन दैट इज ऑल्सो अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस। ये इसलिए अराइज हुआ क्योंकि दोनों पर्सन का आपस में बिजनेस कनेक्शन है। अगर आपस में बिजनेस कनेक्शन नहीं है, चाहे दोनों बिजनेस कर रहे हो, अलग अलग दिशा में बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कनेक्शन नहीं है तो नहीं होगा। अब एक सिचुएशन ये निकल के आता है कि क्या दोनों सचिन सर, इसमें रश्मि मैम का एक थोड़ा सा डाउट है। वो शी इज सेइंग डिपेंड वेदर क्लाइंट इज डूइंग बिजनेस। हाँ, अभी उसी पे आ रहा हूँ। हर डाउट को मैं दूर करने के लिए बैठा हूँ सर, और जहां पे नहीं कर पाऊंगा इसका मतलब मैं खुद भी डाउट में हूँ। तो अब वो सिचुएशन लेते हैं कि क्या दोनों का सिमिलर बिजनेस में होना जरूरी है? रश्मि हमने जो क्वेश्चन पूछा है, हमने अभी डिस्कस किया था कि गिवर का बिजनेस में होना जरूरी है या रिसीवर का बिजनेस में होना जरूरी है। सो इन्होंने ये लैंग्वेज लिखा है अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस। सो रिसीवर का बिजनेस में होना जरूरी है, गिवर का बिजनेस में हो या ना हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी RWA का ऑडिट कर रहा हूं, अब RWA का जब मैंने ऑडिट किया तो उन्होंने मुझे आउट ऑफ अफेक्शन कुछ गिफ्ट कर दिया, चूंकि मैं उनका ऑडिटर हूँ। RWA is not carrying on business because वो तो mutual consensus से चलता है, they are not doing business at all। लेकिन वहां पे जो मुझे गिफ्ट मिला, चूंकि मैं अपना प्रैक्टिस कैरी कर रहा था, इसीलिए वो मेरे हैंड में 194 वो टैक्सेबल होगा, तो वो 194 आर के दायरे में आएगा। इसका मतलब अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन बाय सच रेसिडेंट, तो वो रेसिडेंट जिसको मिल रहा है वो बिजनेस कैरी करने वाला होना चाहिए। तो हमारे इस एग्जांपल में देवेंद्र जी अपना प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं और इनका क्लाइंट इनको फीस नहीं देके कुछ गिफ्ट दे देता है। वेदर दैट इज कवर्ड, यस दैट इज कवर्ड। हाँ, आप ही कह सकते हैं कि नहीं वो तो नॉन रेसिडेंट था, वो कवर होगा कि नहीं होगा, वो हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि एनी पर्सन में क्या नॉन रेसिडेंट को भी कवर करते हैं या नहीं करते हैं। तीसरा सिचुएशन निकल के आता है कि अगर मान लीजिए देवेंद्र जी का कोई क्लाइंट है जो मारुति कार का डीलर भी है, और चूंकि लोग जनरली इस तरह का चीज अपने जानने वाले के यहाँ खरीदना चाहते हैं, तो देवेंद्र जी ने भी अपने क्लाइंट को बोला कि भाई मुझे एक कार चाहिए मारुति, तो उन्होंने बोला जी आप आ जाओ। नॉर्मली वो डिस्काउंट देता था, अपने जो डीलर का डिस्काउंट होता है, लेकिन चूंकि देवेंद्र जी उनके सीए हैं तो उन्होंने इनको एडिशनल डिस्काउंट दे दिया 50,000 का। मतलब दिस डिस्काउंट वो कवर होगा कि नहीं होगा 194 आर। देवेंद्र जी उनके पास इसलिए गए थे कि भाई अपने जानने वाले के पास से लूंगा, उन्होंने साथ में एक बेनिफिट दे दिया। दूसरा,
उन्होंने बोला, दूसरा सिचुएशन लेते हैं, उन्होंने बोला जी वैसे तो मैं आपको डिस्काउंट ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन हमारे पास 3 सर्विस फ्री होती है, मैं आपके लिए 5 सर्विस फ्री कर देता हूँ। तो ये जो 2 एडिशनल सर्विस फ्री मिली है जिसका वैल्यू एज्यूमिंग 20,000 से ऊपर है, क्या वो भी कवर होगा कि नहीं होगा? तो ये सारे चीज जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा ही कवर्ड आइटम है। इसका मतलब आप ये समझिए कि पहले आप ये सोच लीजिए सारा कवर्ड है, उसमें से जो जो नॉट कवर्ड है उसको बाहर करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए। दोनों का सिमिलर बिजनेस में होना जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी देवेंद्र जी वाले एग्जांपल में हमने लिया कि इनका जो क्लाइंट है वो कार डीलर है और देवेंद्र जी अपने प्रैक्टिस में है, दोनों का डिफरेंट बिजनेस है, एक बिजनेस कर रहा है, एक प्रोफेशन कैरी कर रहा है, दोनों का दूर दूर तक आपस में बिजनेस के मामले में कोई लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट कि देवेंद्र जी उनके ऑडिटर है। उस केस में देवेंद्र जी का उनके साथ और उनका बिजनेस कनेक्शन हो गया। द मोमेंट ये बिजनेस कनेक्शन हुआ तो ये अराइजिंग फ्रॉम जो वो गिफ्ट या बेनिफिट उनको मिला है, दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द बेनिफिट। अब एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि अब दिवाली में जो मिल रहा है क्या वो भी कवर होगा? क्योंकि दिवाली में जनरली क्लाइंट देते हैं गिफ्ट, तो क्या वो भी कवर होगा कि नहीं होगा? अब इसमें 2 व्यू निकल के आता है। कई लोगों ने सेमिनार में ये भी बोला कि फीस तो देता नहीं है, गिफ्ट क्या देगा? लेकिन अगर मान लीजिए आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो क्या वो गिफ्ट जो है वो इन गाइज ऑफ योर फीस है? फीस तो मांगेगा नहीं, फीस मेरा सीए ना मांगे इसलिए मैं अच्छा गिफ्ट दे देता हूँ। दूसरा सिचुएशन है कि नहीं, ये फीस तो रेगुलर आती है और गिफ्ट भी आ गई है उनकी, तो कौन सा वाला कवर होगा? दोनों सिचुएशन को इसमें कवर कर रहा है, क्योंकि पूरे सर्कुलर में इन्होंने कहीं नहीं बोला है कि मैं दिवाली गिफ्ट और इन सबको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, कहीं नहीं बोला गया। तो टेक्निकली सारा कुछ कवर्ड है, एक्सेप्ट इट शुड बी अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस। तो आपका जिनके साथ बिजनेस कनेक्शन होगा आप उनको गिफ्ट करेंगे तभी होगा। अगर मैं किसी और को गिफ्ट करूंगा तो पहला क्वेश्चन आएगा मैं किसी और को क्यों गिफ्ट करूंगा, जिससे मेरा कुछ लेना देना नहीं होगा। क्योंकि दिवाली में लोग अपना कमर्शियल टारगेट भी पूरा करते हैं गिफ्ट वगैरह करके। तो ये हमने डिस्कस किया। अब ये टर्म जो बेनिफिट और परक्विजिट है, क्या ये पहली बार आया है या पहले भी था? तो सर 28(4) सेक्शन हुआ करता था हुआ करता है हमारे एक्ट में, जो कि ये टर्म को ऑलरेडी कवर करता है। और ये सेक्शन अगर आप देखेंगे तो सिमिलर टू 28(4) है। तो क्या दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? यस, दोनों का आपस में रिलेशन है, बहुत गहरा रिलेशन है। क्योंकि 28(4) वाला जो सेक्शन है उसमें वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होता है, बिजनेस हेड में कवर होता है। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ही कहती है कि जो भी आपको बेनिफिट या परक्विजिट मिला है एंड दैट इज अराइजिंग फ्रॉम योर बिजनेस और प्रोफेशन, वो आपका इनकम है। 28(4) में आपको उसको बिजनेस हेड में दिखाना है। लेकिन अगर वो कैश में मिला है तभी तो दिखा सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कैश में मिला तो नॉट कवर्ड, तो काइंड में मिला। अब सपोज कीजिए आपका कोई क्लाइंट है जिसको काइंड में या उसने कोई टारगेट पूरा किया, वो पेंट सेल करने की कंपनी है, उसने अपना दिवाली के टाइम पे टारगेट पूरा कर लिया, तो कंपनी ने बोला कि मैं आपको एक मालदीव्स का टूर दे रहा हूँ। अब मालदीव्स चला गया, घूम के आ गया, या ये जो बेनिफिट उसको मिला, क्या वो पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पे आएगा? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा। अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा तो इनकम में भी नहीं आएगा। जब इनकम में नहीं आएगा तो वो 28(4) मतलब 28 से बाहर हो जाता था, 28 में छूट जाता था। जो पेयर है उसने अपने एक्सपेंडिचर में इसको क्लेम कर लिया तो उसको डिडक्शन मिल गया। जो रिसीवर है उसने इनकम में नहीं दिखाया तो डबल लॉस। तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक मिसिंग लिंक है, अगर जो पेयर है वो एट अ टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट जो प्रोवाइडिंग अगर वो टीडीएस काट ले तो ये रिपोर्ट हो जाएगा 26 ईयर्स में कि इनको इतना बेनिफिट और परक्विजिट मिला है, और ये जो बेनिफिट और परक्विजिट मिला है तो फिर हम उसके इनकम में जाकर देख लेंगे कि उसने शो किया है या नहीं किया। अगर वो नहीं, आपका बिजनेस का इनकम बिजनेस का पार्ट नहीं है तो आप नहीं शो करेंगे, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने क्यों नहीं शो किया। तो ये बेसिक इंटेंट था इस सेक्शन को लाने का, और फाइनेंस मिनिस्टर ने, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में भी इसको कवर किया हुआ है। तो 28(4) के साथ इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे द वैल्यू 28(4) कहता है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। सेम चीज 194(r) में वो कहते हैं एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। सो दोनों में सेम चीज है, सिर्फ 28(4) में एक चीज एडिशनल वो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ रिसीविंग होगा तो वो बिजनेस इनकम के हेड में टैक्सेबल होगा। 194(r) वैसा कुछ नहीं बोलता है, उसको सिर्फ टीडीएस काटने से मतलब है।
किस हेड में टैक्सेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे टैक्सेबल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ टीडीएस काटने तक अपने दायरे को सीमित रखता है। सो 28(4) सेम टर्म। परक्विजिट क्या और भी कहीं डिफाइंड है? यस, परक्विजिट इसके अलावा 2 जगह और डिफाइंड है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, जो कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है। तो दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। सचिन सर, दीपक आजाद सर ने एक क्वेश्चन पूछा है अभी प्रीवियस वाले सेक्शन के रिगार्डिंग, दैट इज से कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सीएसआर टू एन एनजीओ विल नॉट बी कवर्ड, काइंडली एडवाइस। अच्छा, उनका क्वेश्चन आंसर में है क्या? Q&A में, हाँ सर। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, आप उसको आंसर लाइव भी कर दीजिए ताकि अटेंडी भी उस क्वेश्चन को देख लें। ठीक है, ठीक है। हाँ। सो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सीएसआर टू एन एनजीओ विल नॉट बी कवर्ड, काइंडली एडवाइस। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो एनजीओ का जो ये मिला है, क्या ये बिजनेस से अराइज हो रहा है? पहला चीज, क्या ये जो सीएसआर है इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? सो यहाँ पे जब हम 194R को टेस्ट करें तो हमें ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि जो पेयर है उसके वो खर्चा में अलाउ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 37 का पार्ट बनता है नहीं बनता, हमें वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज आप कह सकते हैं कि यस, इवन इन केस ऑफ सीएसआर ये सेक्शन अप्लीकेबल होना चाहिए, बट ये थोड़ा अभी तक चूंकि इसको हम लोगों ने इस तरह से टेस्ट नहीं किया और ना ही ये सर्कुलर में इसको कहीं भी कवर किया गया है, सो रेडियली आंसर टू माय माइंड कि ये सिचुएशन को इसमें कवर नहीं किया जाएगा, बिकॉज इसका पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है। यू आर नॉट गिविंग एनी बेनिफिट और परक्विजिट टू द एनजीओ। आप उसको दे रहे हैं ये फंड उस पर्पस के लिए कि आप इसको यूटिलाइज करेंगे, तभी आप उसको फंड दे रहे हैं। सो दिस इज नॉट बेसिकली यू आर गिविंग एनी बेनिफिट और परक्विजिट। सो बेनिफिट और परक्विजिट का मतलब क्या होगा? आपने मुझे कुछ दिया दैट आई कैन यूज एज पर माई विश। आपको उसके बाद कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे जब आप उसको कंट्रीब्यूट करते हैं सीएसआर को, तो आपका ये भी रहता है कि किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, प्रॉपर पर्पस के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। सो टू द एक्सटेंट ऑफ माई नॉलेज की जितना सीएसआर को मिलना मैं समझता हूँ, अगर ये बैकग्राउंड है देन दिस इज नॉट बेनिफिट ऑफ पर्पस टू माई माइंड। सो 28(4) को हमने डिस्कस किया, ये पुराना सेक्शन है। इसके अलावा सिमिलर टर्म परक्विजिट्स 17(2) में भी कवर किया गया है, और जब फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हुआ करता था उस समय भी उसको कवर किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट में आते हैं 28(4). जैसा हमने अभी डिस्कस किया, द बेनिफिट और परक्विजिट मस्ट अराइज फ्रॉम बिजनेस ऑफ द एसएससी। सो बिजनेस ऑफ द एसएससी मींस रिसीवर की बात कर रही है, उससे अराइज होना चाहिए, एंड देयर मस्ट बी अ नेक्सस बिटवीन द बिजनेस ऑफ एन एसएससी एंड द बेनिफिट और परक्विजिट। जो बेनिफिट और परक्विजिट की बात कर रहे हो वो उस बिजनेस से अराइज होना चाहिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, एंड दिस जजमेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट 28(4), जहां पे उन्होंने ये बोला कि नहीं, अगर वो बिजनेस से लिंक्ड नहीं है तो वो कवर नहीं होगा। तो सिमिलरली अगर मैं किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ और उसमें मेरा कोई बिजनेस का लिंकेज नहीं है, या मैं ये प्रूव कर दूं डिपार्टमेंट को कि साहब यहाँ पे हमारा कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, देन इट कैन बी सेड इट इज आउट ऑफ 194R, अदरवाइज इट इज कवर्ड। ये वो एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर पीरियड से पहले है, 30 जून के पहले है और बाद में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कैसे टेस्ट होगा। 25,000, 60,000 बाद में नील हो गया, तो ये वो चीज है। ये बहुत सिंपल था समझने के लिए, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाया। अब दूसरा चीज निकल के आता है वैल्यूएशन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने अपने फर्स्ट सेक्शन में भी इन्होंने लिखा है द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू। तो हाउ टू डिटरमिन द वैल्यू, तो वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए इन्होंने अपने FAQ में उसको कवर किया है। FAQ में इसको कवर किया है जिसमें ये कहते हैं जी वैल्यू इसका कैसे निकलेगा। अब वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने बोला कि अगर कोई नॉर्मली फेयर मार्केट वैल्यू एक्सेप्ट इन 2 केसेस, विच आर द केसेस। पहला, अगर आपने उसको परचेज किया है, अगर द बेनिफिट जो प्रोवाइडर है उसने उसको परचेज किया है तो उसको पता है इसका परचेज प्राइस क्या है, तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू की जरूरत नहीं है। अगर उसने उसको मैन्युफैक्चर किया है तो मैन्युफैक्चर
का जो कॉस्ट है वो होगा, तो उसको पता है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना, उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप परचेज करके लाते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू अप्लीकेबल नहीं होगा। अब फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो 222 कैपिटल बी 222 कैपिटल बी फेयर मार्केट वैल्यू को डिफाइन करता है, बट दैट इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एसेट। सो व्हाट इफ जो आपको मिला है वो कैपिटल एसेट नहीं, तो मैं वैल्यू कैसे करूंगा? तो बोला कि आपको उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू तो फेल हो जाएगा, परचेज लेना पड़ेगा, परचेज होगा, या और परचेज के लिए उन्होंने बोल दिया एक्सेप्ट दो केसेस में, तो मैं वैल्यू कैसे करूँ? अगर मैं फेयर मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकता, या नहीं निकाल सकता, जेन्युइनली उसका नहीं निकाला जा सकता, और नीचे का दो कंडीशन भी मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो आपका ये पूरा सेक्शन फेल हो जाएगा। बिकॉज सेक्शन 245 बोलता है कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अगर मैं करता हूँ, किसी टोटल इनकम मैं कंप्यूट करता हूँ, तो टोटल इनकम मींस टोटल इनकम एज पर सेक्शन 5 कंप्यूटेड इन द मैनर लेड डाउन इन द एक्ट। इसका मतलब कंप्यूटेशन मैकेनिज्म होना जरूरी है। अगर कंप्यूट नहीं कर पाऊंगा तो मैं फिर इसके ऊपर टीडीएस का रेट भी नहीं लगा पाऊंगा, तो मुझे वो वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू के लिए इन्होंने जो दिया है दैट इज नॉट सफिशिएंट। तीसरा जिन्होंने एक और बोला कि जो भी आप अगर आपने परचेज किया है या मैन्युफैक्चर किया, उसमें से आपको जीएसटी का प्राइस के ऊपर टैक्स नहीं लगाना है। सो मान लीजिए मैंने देवेंद्र जी के लिए 50,000 रुपए का गिफ्ट लेकर आया, अगर मैं गिफ्ट लेकर आया तो उसके ऊपर मेरा 18% का जीएसटी यानी कि 9,000 रुपये जीएसटी लग गया। अभी कहते हैं जी उस 9,000 का 194 आर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ उस केस में लगाने की जरूरत नहीं है जहां पे कि आपको उसका क्रेडिट मिल रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार क्रेडिट मिलेगा, बिकॉज जो क्रेडिट के लिए इंपॉर्टेंट टर्म, जितना मैं जीएसटी को समझता हूँ, क्रेडिट के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म है कि वो जो आपने आइटम आप लेके आ रहे हैं दैट इज फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर वो है तो आप कह सकते हैं अब इसका वो क्रेडिट मिलेगा। अगर वो क्रेडिटेबल आइटम नहीं है या आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो आपका वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अब वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो वो जीएसटी में उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो मुझे नहीं पता, और इनकम टैक्स में आप उसको कॉस्ट में लेके जा रहे हैं। क्यों इन्होंने, क्योंकि इन्होंने उसको क्लैरिफाई नहीं किया कि जिसमें आपको क्रेडिट मिल रहा है सिर्फ उसी में आपको प्राइस में ऐड नहीं करता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 50,000 का गिफ्ट दे रहा हूँ, 9,000 रुपये जीएसटी लगा है, तो यानी 50,000 के ऊपर टैक्स लगाइए, 194 आर एप्लीकेबल होगा, 9,000 के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी के ऊपर इन्होंने मना किया। ये एक गैप है जो यहाँ पे, अदरवाइज इसमें क्या होगा कि वो 9,000 मेरे लिए एक इशू बन जाएगा कि मैं उसको कहाँ लेके जा रहा हूँ। दूसरा सिचुएशन है, चूंकि इन्होंने बोला कि आप बेनिफिट और प्रोड्यूस आपने प्रोवाइड किया है वो आपने परचेज किया है, तो फेयर मार्केट वैल्यू अप्लाई नहीं। अब एक सिचुएशन लेते हैं, अब मैंने तो बहुत बार देवेंद्र जी को बेनिफिट और प्रोड्यूस दे दिया, मैं देवेंद्र जी से बेनिफिट और ले रहा हूँ, क्योंकि हर बार देना ठीक नहीं है ना, अब मैं लेता हूँ सर से। तो देवेंद्र जी, अब आप देवेंद्र जी मुझे बेनिफिट और परक्विजिट दे रहे हैं। इन्होंने कोई गिफ्ट खरीदा था 1 अप्रैल 2022 को, तो इन्होंने बांटा पूरे साल भर, कुछ बच गए, तो जो बच गए इन्होंने बोला चलो सचिन जी को भी दे देते हैं। अब हर एक सामान की वैल्यू 50,000 थी जब इन्होंने खरीदा था, तो इन्होंने मुझे 50,000 का वो गिफ्ट 31 मार्च 2022 को दे दिया, एज्यूमिंग कि हमारा बिजनेस कनेक्शन है और हमारा बिजनेस रिलेशन भी है। अब इन्होंने 31 मार्च को जो मुझे दिया है, तो उस समय उसकी वैल्यू 70,000 हो गई, इन्होंने खरीदा था 50,000 में, तो उस पे 70,000 पे टीडीएस कटेगा या 50,000 पे टीडीएस कटेगा? यस, नाउ आंसर, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम द ऑडियंस। 50,000 पे टीडीएस कटेगा या 70,000 पे कटेगा? क्वेश्चन इज क्लियर। देवेंद्र जी ने मुझे गिफ्ट दिया है, 50,000 में खरीदा था, लेकिन जब दे रहे हैं तो उसका वैल्यू 70,000 हो गया, तो 50,000 पे कटेगा या 70,000 पे कटेगा? एनी आंसर? 50,000 ओनली। वेरी गुड। और कोई व्यू? क्योंकि जो इन्होंने लैंग्वेज यूज किया है, ये कहते हैं अगर गिवर ने परचेज किया है, सो मनोज सर लिखते हैं 70, संदेश सर लिख रहे हैं 50, सो 20,000 का तो यहीं पे गैप आ गया। ये लैंग्वेज दे रहे हैं कि अगर जो गिवर ने परचेज किया है
तो उस केस में मुझे फेयर मार्केट वैल्यू देखने की जरूरत नहीं। अब चूंकि हमारे एग्जाम्पल में देवेंद्र सर ने इसको परचेज किया था, चाहे 1 साल पहले किया हो या 2 साल पहले किया हो, कभी भी किया हो, परचेज किया हो, और अब वो गिफ्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम का फेयर मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, मुझे तो वो देखना है कि परचेज इन्होंने कितने में किया था। वाइस वर्सा भी हो सकता है, इन्होंने खरीदा था 50 में, अभी उसकी वैल्यू 30 हो गई, तो भी 50 ही एप्लीकेबल होगा सर, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। डेफिनेशन इज ओनली रेफर टू कैपिटल एसेट, फेयर मार्केट वैल्यू, प्रोवाइडर, रिसीवर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। ये एक और नया चीज निकल के आया है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के ऊपर क्या होगा, और ये मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट का इसमें इश्यू है। लेकिन उसके पहले वैल्यूएशन में भी एक चीज हमारा रह गया कि 50,000 का गिफ्ट है। अब देखिए, मुझे जो सेक्शन आप लोगों को ध्यान में हो, उन्होंने बोला था द गिवर शैल इंश्योर बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट और परक्विजिट दैट द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड। सो अब सिचुएशन कैसे बनता है, अरुण सर हमारे सबके रेस्पेक्टेड मेंबर हैं और सब लोग इनका रिगार्ड करते हैं। आउट ऑफ दैट रिगार्ड देवेंद्र जी ने इनके लिए एक गिफ्ट भिजवाया, और आपस में बिजनेस कनेक्शन है ये हम मान के चल, तभी 194 एप्लीकेबल गिफ्ट भिजवाया। 1 लाख का गिफ्ट है देवेंद्र जी, आपके लिए क्वेश्चन है, 1 लाख का गिफ्ट है, और इनको तो वो चूंकि सामान है तो इनको तो इंश्योर करना है कि टैक्स जमा हुआ है, इनको पे करने के लिए नहीं बोला, इनको बोला कि इंश्योर करना है। तो इन्होंने अरुण सर को फोन किया कि सर वो मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। अरुण सर बोले बहुत बढ़िया, भिजवा दो, उसकी वैल्यू 1 लाख है। ओके, अब आप सर ऐसा कीजिए 10,000 रुपये टैक्स जमा कराना पड़ेगा, तो आप जमा करा दो तो मैं आपको भिजवा दूंगा। अरुण सर बोलेंगे कैसा गिफ्ट, मैंने तो देखा नहीं, कुछ नहीं, और ये मुझे बोल रहा है 10,000 जमा करा दो पहले। तो एक सिचुएशन थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा है सुनने में कि मैं रिसीवर को बोलूंगा कि आपके लिए गिफ्ट है, आप जमा कराओ तब मैं आपको भेजूंगा। दूसरा सिचुएशन कि 1 लाख का गिफ्ट है, अब अरुण सर को देवेंद्र सर को लगा कि यार मैं सर को बोलूंगा 10,000 आप जमा करो, अच्छा नहीं लगता, मैं 10,000 मैं ही जमा करा देता हूँ। जिसका क्रेडिट किसको मिलेगा, अरुण सर को मिलेगा। तो अगर अरुण सर को क्रेडिट मिलेगा तो अरुण सर को कितने का बेनिफिट चला गया, 1 लाख प्लस 10,000, तो 1,10,000 का बेनिफिट चला गया। तो टेक्निकली 1,10,000 के ऊपर 194 आग लगना चाहिए था, लेकिन अरुण सर ने तो 1 लाख के ऊपर, देवेंद्र सर ने तो सिर्फ 1 लाख के ऊपर टीडीएस काटा है। तो गवर्नमेंट ही कहती है कि नहीं जी आपको तो 1,10,000 पे टीडीएस काटना चाहिए था। तो अरुण सर ने बोले चलो ठीक है 11,000 जमा करा देता हूँ। तो जब 11 करा दिया तो अब ये हो गया 1,11,000। तो इनको जमा कर, इनको अब टीडीएस कटना चाहिए 11,100 रुपये। फिर जब सर ने चलो 11,100 करा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो अब 11,110 रुपये का फर्क आ गया, 10 रुपये का फर्क आ गया। तो आपको ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा कि ये अगर ये टैक्स मैं बियर करूंगा तो मुझे ग्रॉस अप करना पड़ेगा। इसी को अवॉइड करने के लिए क्रॉसिंग अप के लिए तो आपको अवेलेबल है 195 कैपिटल आपको अवेलेबल है। दूसरा सिचुएशन बोलते हैं अगर रिसीवर जिसको आप दे रहे हैं वो खुद जमा करा दे, तो फिर आपको 10%, जैसे आपने 1 लाख का गिफ्ट दिया, उन्होंने 10,000 टैक्स जमा करा दिया, तो बेनिफिट कितने का मिला, 1 लाख का, 10,000 उन्होंने टैक्स जमा करा दिया, उसका जिसका क्रेडिट उनको ही मिलना है नहीं, तो उनका तो कुछ लॉस हुआ नहीं, तो उनको बराबर हो गया। अब सिचुएशन ये निकल के आता है, क्योंकि मैंने बता दिया कि आपका अब वो जमा कैसे कराएंगे, तो बोले जी उनको बोलो वो एडवांस टैक्स की तरह जमा कराएंगे। अब एडवांस टैक्स का सिचुएशन एक अलग सेक्शन डील करता है हमारे इनकम टैक्स में, 200 सेक्शन 207, 208, 209, जो कहता है जी एडवांस टैक्स आप कब जमा करेंगे उसका पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है, और अगर आपके वो अप्लीकेबल नहीं होगा तो आप नहीं जमा करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि नहीं जी उनको जमा कराना पड़ेगा, तो एडवांस टैक्स जमा कराएंगे। अब अगर वो जमा करा रहे हैं तो मैं उसका अपने रिटर्न में कैसे काउंट करूंगा, तो 26Q में इन्होंने जाके अमेंडमेंट कर दिया, फॉर्म 26Q में इन्होंने मॉडिफाई कर दिया कि वो जो पेमेंट कर रहा है आप उसको अपने रिटर्न में दिखाएंगे तो उनको क्रेडिट मिल जाएगा, तो क्रेडिट का कोई लॉस नहीं हुआ। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया, देवेंद्र सर क्लियर है ना? यस सर। ओके आगे पार्टिसिपेंट्स अगर किसी पार्टिसिपेंट्स के अगर चाहते हैं सर के यहाँ डिस्कशन करना तो रेज हैंड कर दीजिए, हम लोग अलाउ कर देंगे आपको सेशन में बोलने के लिए। बिल्कुल। राघव महेश्वरी सर आप पूछना चाहते हैं कुछ?
चलिए सर आगे चलिए थे अभी Okay. कुछ जवाब नहीं आ रहा आज। ठीक है, अब आते हैं सर, वेदर आउट ऑफ बेनिफिट पॉकेट एक्सपेंसेस इज बेनिफिट और परक्विजिट। सो सीए फॉर्म में ये बहुत कॉमन है, या एडवोकेट के फॉर्म में बहुत कॉमन होता है कि हम अपने बिल में या एडवोकेट्स अपने बिल में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस डालते हैं। 50 से 1 लाख का फीस है, 20,000 रुपया आउट ऑफ पॉकेट, टोटल 1,20,000 रुपया, और पूरे पे टीडीएस भी लगाते हैं, और सामने वाला 194J में पूरे पे टीडीएस भी काट रहा है। अभी क्वेश्चन ये निकल के आता है, ये जो 20,000 है, 1 लाख पे तो 194J ठीक है, ये 20,000 के ऊपर भी क्या 194J लगेगा या 194R लगेगा? अब इन्होंने बोला कि जो भी बेनिफिट और परक्विजिट आपको मिल रहा है, सो वेदर दिस 20,000 इज बेनिफिट, सो कहता है यस दिस इज बेनिफिट, क्योंकि आपका तो एग्रीमेंट 1 लाख का ही था, आप एडिशनल उनसे 20,000 ले रहे हो, दिस इज लाइक अ बेनिफिट, सो आपको ये 194R इसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। दूसरा सिचुएशन, अगर ये तो हुआ कि मैंने अपने बिल में लगा के ले लिया लमसम, लेकिन अगर मैंने कोई जेन्युइनली खर्चा किया, जैसे मैंने उनके लिए कोई उनके यहाँ ऑडिट में जाने के लिए मैंने ट्रेन की टिकट बुक कराई या फ्लाइट की टिकट बुक कराई और मुझे क्लाइंट ने रिम्बर्स कर दिया, तो उस केस में ये कहते हैं कि अगर उसके उस इनवॉइस के ऊपर क्लाइंट का नाम है, उस इनवॉइस के ऊपर क्लाइंट का नाम है, तो जी ये क्लाइंट का खर्चा है, देन इट इज नॉट अ रिइंबर्समेंट और देन इट इज नॉट अ बेनिफिट परक्विजिट। अगर ये आपके नाम पे है, अगर ये आपके नाम पे है, तो ये आप अपना पैसा रियलाइज कर रहे हो उनसे, इसका मतलब ये आपका बेनिफिट है। जीएसटी में भी उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि अगर आप रिइंबर्समेंट कराते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का, तो कहते हैं जी इसके ऊपर भी जीएसटी लगाओ, क्योंकि ये बेसिकली आपका टोटल इनकम का ही पार्ट बनना चाहिए था जीएसटी पर्पस के लिए। तो सेम अगर आप देखें तो मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट ये लेकर आए कि अगर ये आप रिइंबर्समेंट ले रहे हैं और ये इनवॉइस आपके नाम पे है, देन आपको इसका कॉस्ट बेयर करना चाहिए था, लेकिन क्लाइंट बेयर कर रहा है, सो इट इज योर बेनिफिट और परक्विजिट। तीसरा सिचुएशन है, अगर आपके एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है, जैसे कि बैंक ऑडिट में आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है, तो उसमें लिखा होता है कि ऑल लॉजिंग बोर्डिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आर बी बोर्न बाय द ब्रांच और या बैंक जो भी है, तो उस केस में चाहे टिकट मैंने कराया हो या उन्होंने कराया हो, वो आपके इनकम वो रिइंबर्समेंट का पार्ट, वो ये 194R का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि एज पर एग्रीमेंट वो लायबल है पेमेंट करने के लिए। सो they are not providing any benefit to me by way of reimbursement, ये उन्हीं का खर्चा था जो वो पे कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में ऐसा मिसिंग है, तो जनरली लोग क्या करते थे, अगर मेरा किसी बॉम्बे के पार्टी के साथ किसी आईटी का मैटर में मुझे अपेयर होना है, तो हमने बोला जी मैं 1.5 लाख की फीस लूंगा प्लस आने जाने का खर्चा। उन्होंने बोला आने का खर्चा कितना लगेगा, मैं कुछ भी दे सकता है, 50,000, 60,000, 70,000। उन्होंने बोला एक काम करो, लमसम में 2 लाख दे रहा हूँ, इसी में आप कर लो। अब मैंने देखा कि अगर मैं 2 लाख के ऊपर जीएसटी लगाऊंगा तो मैं 18% तो 36,000 रुपये लग जाएगा, तो बेटर ये कि मैं 1.5 लाख पे कर लेता हूँ, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उतने का मैं उनसे रिइंबर्समेंट ले लूंगा। तो उस पर्पस को भी यहाँ पे, अगर उस तरह का कोई इंटेंशन है, तो उसको भी यहाँ पे अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं। एक और सिचुएशन निकल के आता है, अगर मेरी टीम का कोई, अगर मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, मेरे टीम का कोई मेंबर जा रहा है और कंपनी ने अपने ही गेस्ट हाउस में ठहराया है, तो मैंने उनसे कुछ रिइंबर्समेंट नहीं लिया, उन्होंने कुछ पेमेंट नहीं किया, उस केस में क्या होगा? तो वो सिचुएशन को इसमें कवर नहीं किया गया। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब मैं उनसे कुछ रिइंबर्समेंट ले रहा हूँ। अगर मैं उससे कुछ नहीं ले रहा हूँ, वो अपने गेस्ट हाउस में ठहरा रहा है, एक थॉट ये निकल के आ सकता है कि साहब अगर आप उसका गेस्ट हाउस नहीं होता तो आप किसी होटल में ठहरते जिसका आप पेमेंट करते और फिर आप उसे रिइंबर्समेंट लेते, तो क्यों नहीं कवर होगा? लेकिन वो इसको इस स्ट्रेच वहां तक स्ट्रेच नहीं किया इन्होंने। अगर आप ऑडिट करने जा रहे हैं, देवेंद्र जी ऑडिट करने गए यहाँ से बॉम्बे और कंपनी ने अपने ही गेस्ट हाउस में ठहराया है, तो फिर वो रेंट फ्री अकोमोडेशन इनके लिए हो गया, जिसमें कि जो कि इनके लिए इन्होंने कुछ नहीं पे किया और ना ही इनको उसके बदले कुछ मिलने वाला है, तो उसको इसमें इसके दायरे से बाहर रखा है। एक इसके अलावे बेनिफिट परक्विजिट के अलावे जो और सिचुएशन निकल के आ रहे हैं, जैसे कि देवेंद्र जी के कुछ टीम मेंबर यहाँ से बॉम्बे गए ऑडिट करने और क्लाइंट ने उनको गिफ्ट दे दिया, देवेंद्र जी को गिफ्ट नहीं दिया, उनको गिफ्ट दे दिया। जनरली ऐसा होता है, जो ऑडिट में जाते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ट्रेडिंग होते हैं तो वो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, तो उन्होंने गिफ्ट दे दिया उसको। अब जब गिफ्ट दे दिया तो क्या वो 194R एप्लीकेबल होगा या नहीं? सो इसमें 2 सिचुएशन जो उन्होंने अपने गाइडलाइन में भी कवर किया है। अगर जो देने वाली कंपनी है और जो जिनको मिला है वो अगर एम्प्लॉय है कंपनी के,
तो उस केस में जो देने वाला है, जो गिवर ऑफ द गिफ्ट है, वो टीडीएस काटेगा 194R में रिसीवर कंपनी के ऊपर, ना कि इंडिविजुअल्स के ऊपर, रिसीवर कंपनी के ऊपर काटेगा 194R। और जो रिसीवर कंपनी है वो 17(2) में परक्विजिट काउंट करके उसके अपने उनके इनकम में ऐड करेगी और अपने यहाँ उसका एक्सपेंडिचर क्लेम करेगी। दूसरा सिचुएशन, अगर किसी कंसल्टेंट को दिया गया, यानी कि जो ऑडिट में गया वो भी कोई थर्ड पर्सन था, कंसल्टेंट, मैं किसी कंसल्टेंट को हायर किया कि आप जाके कर दो, वो गया, उन्होंने उनको गिफ्ट दे दिया, तो भी क्या ये कवर होगा? तो बोला कि जो रिसीवर, जो गिवर है, वो जिस कंपनी का वो कंसल्टेंट बन के गया है, उसके बीच में ट्रांजेक्शन को पहले एनालाइज करेंगे और उसके ऊपर 194R लगेगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन है वो रिसीवर कंपनी और एक्चुअली में जो पर्सन रिसीव किया उसके ऊपर है, तो उस केस में उसको टेस्ट करना है कि 194R लग सकता है कि नहीं लग सकता। सिंस द पर्सन इज इन कंसल्टेंसी, तो ये कह सकते हैं कि उसका इनकम भी बिजनेस साइड में जा रहा है, is carrying on his exercising his profession, so उस केस में यस 194R applicable होगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये लेकर आए कि अगर मैं डीलर्स का कोई मीटिंग कराता हूँ, सो फॉर एग्जांपल कि नॉर्थेक्स सीपी स्टडी सर्कल ने ये डिसाइड किया कि हमारे जितने भी 150-200 मेंबर हैं, हम इनका एक रेसिडेंशियल कोर्स कराएंगे। रेसिडेंशियल कोर्स का मतलब हम दिल्ली के बाहर किसी बढ़िया जगह में जाएंगे और वहां एक होटल बुक करेंगे और वहीं पे 4 दिन का सेमिनार करेंगे। तो उसकी फीस लगती है, वो सब फीस हो गई। और इसमें जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो ऐसा बनाया गया कि आपको 3-3 घंटे डेली पढ़ाई होगी और उसके बाद फिर आप एंजॉय कर सकते हो। 3-3 घंटे पढ़ाई होगी, उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हो। तो उस केस में इन्होंने बोला ये जो 3 घंटे की आप पढ़ाई करोगे तो ठीक है, लेकिन जो आप बाकी का एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो वो एंजॉयमेंट हमें बर्दाश्त नहीं है, तो हम आपको वो अलाउ नहीं करेंगे साहब। तो बोले क्या उसके ऊपर भी परक्विजिट, वो भी परक्विजिट में काउंट होगा? बोले यस, वो भी परक्विजिट में काउंट होगा। फिर कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि 3 घंटा पढ़ा कि 4 घंटा पढ़ा कर, हमें उससे मतलब नहीं है, हम एट्रीब्यूट करेंगे। कैसे एट्रीब्यूट करेंगे वो चीज उन्होंने नहीं बताया उसमें कि कैसे एट्रीब्यूट करेंगे, पर उन्होंने बोला कि हम एट्रीब्यूट करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये लेकर आए, अगर मान लीजिए आपकी कोई पेंट की कंपनी, तो आपने बोला कि जी मैं सारे डीलर को ले जाना चाहता हूँ और गोवा में जाके हम एक सेमिनार करते हैं ताकि इनको हम प्रोडक्ट के बारे में बताएं, इनको नया प्रोडक्ट के बारे में समझाएं, कैसे कस्टमर से मिलना है, क्या उनको डिस्प्ले करना है, उनको बताएंगे। ठीक है, अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ये 194R के दायरे में नहीं आएगा, आपको अलाउ करते हैं। लेकिन अब आपने बोल दिया कि नहीं जी हम तो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही लेके जाएंगे, सबको नहीं लेके जाएंगे, पहला चीज। दूसरा, वहां पे कुछ लेजर पीरियड भी होगा, जैसे कि 2-3 घंटे का सेशन होगा, उसका फिर एंजॉय करो 2-3 दिन। कह रहे नहीं जी, उस केस में फिर आपका 194R लग जाएगा। ओके, अब जब कॉन्फ्रेंस चल रहा है, रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो अरुण सर का ये कहना है कि भाई मैं तो सुबह की फ्लाइट में नहीं पहुंच सकता, तो सुबह सुबह मैं नहीं जाऊंगा एयरपोर्ट, बहुत रश होता है, मैं एक दिन पहले ही पहुंच जाता हूँ। चलो आप एक दिन पहले आ जाओ सर, कोई बात नहीं, एक दिन पहले पहुंच गए, वहां स्टे किया और वहां से रात की फ्लाइट थी, मैं रात को भी फ्लाइट में ट्रेवल नहीं करूंगा, मैं अगले दिन सुबह चला जाऊंगा, 10 बजे के आसपास में चला जाऊंगा। ठीक है जी, तो ये जो प्रायर स्टे और ओवर स्टे हो गया, ये भी बेनिफिट और पर्पस है। इसका मतलब आपको उसी समय पहुंचना है, अटेंड करना है और अपना कॉन्फ्रेंस खत्म करना, सीधा वापस आना है। अगर आप जहां इधर उधर हुए तो आपका 194R में कवर हो जाएगा। अब इतना टाइट रोप के ऊपर कैसे चला जाएगा, आई डोंट नो कि इसको कैसे डिपार्टमेंट एनालाइज करेगा, कंसल्टेंट कैसे एनालाइज करेगा, आपका क्लाइंट आपसे कितनी बार इन सिचुएशन को डिस्कस करेगा कि साहब मैं ये दे रहा हूँ तो काटूं ना काटूं, बनेगा नहीं बनेगा, बहुत सारे सिचुएशन आएंगे। ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल चैलेंजेस, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो सभी लोगों को फेस करना है। सूनर और लेटर ये हर किसी के पास ये सिचुएशन आएगी। सचिन सर, सेम 194R से रिलेटेड एक Q&A के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है विशाल सर का। हाँ, आप जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज अ प्रैक्टिस ऑफ गिविंग क्लब बेनिफिट्स। सचिन सर, आंसर लाइव पे एक बार क्लिक कर देंगे तो ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्वेश्चन भी नजर आ जाए। हाँ प्लीज सर। ओके, so general insurance industry has a practice of giving club benefit, stationary expenses, etc. to its agents apart from insurance commission to solicit insurance business. The above payments are covered under 194D of the Act. Now that section 194 has been introduced, what would be
the way forward for above payments. So ये इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि हमें ये देखना है कि जो पर्सन सिर्फ मेडिएट कर रहा है, यानी कि जैसे इन्होंने बोला कि जो एजेंट्स हैं उनके पास जाता है गिफ्ट और वो गिफ्ट आगे पास ऑन कर रहे हैं, तो उस केस में वो पर्सन अपने पास कुछ होल्ड नहीं कर रहा है, आगे पास ऑन कर रहा है। तो ये अगर 194R होगा भी तो किसके ऊपर होगा? गिवर और रिसीवर के ऊपर होगा, सब्जेक्ट टू कि रिसीवर बिजनेस में होना चाहिए या उसके बिजनेस से अराइज होना चाहिए। क्या ये उसके बिजनेस से अराइज हो रहा है? रिसीवर अगर इंश्योरेंस बिजनेस में नहीं हो, सपोज कीजिए मैं रिसीवर हूं और मैं अपना बिजनेस कैरी कर रहा हूं और मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लब बेनिफिट्स दिया या जो भी कुछ दिया, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या मैं अपना बिजनेस कैरी कर रहा हूँ? उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि बिजनेस इंश्योरेंस का तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अदर बिजनेस कैरी कर रहा हूँ, तो क्या ये मुझे बिजनेस के कारण अराइज हुआ है? टू सम एक्सटेंट नो। लेकिन सर का जो एक साथ में ये भी क्वेश्चन है कि 194D में ये ऑलरेडी कवर हो रहा है। सो हालांकि इन्होंने इस सेक्शन में कहीं नहीं बोला कि अगर ये कहीं और टैक्स हो रहा है तो यहाँ टैक्स नहीं होगा, लेकिन डब्ल्यू टैक्स तो नहीं हो सकता, दैट इज वेरी श्योर। सो अगर ये स्पेसिफिक सेक्शन है इसके लिए 194D जहाँ पे कवर कर रहा है, then 194R will not apply in this case as per my understanding, considering the specific over general। जो इंटरप्रिटेशन जो प्रिंसिपल है अप्लाई करने का वो यही है, इसको स्पेसिफिक ओवर जनरल, इसलिए हम लोग स्पेसिफिक सेक्शन को अप्लाई करेंगे, ना कि जनरल सेक्शन को अप्लाई करेंगे। whether such दिनेश सर ने पूछा है whether such benefit is liable for GST, that is whether receiver will also file GST। सर आई डोंट नो किस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है, लेकिन जो लैंग्वेज था वो ये था कि बेनिफिट था आप दे रहे हैं उस पे जीएसटी के ऊपर आपको 194R नहीं लगाना है। अगर 194R उस बेनिफिट पे नहीं लगाना है तो फिर वो कैसे ट्रीटमेंट होगा उसका, ये हम लोगों ने क्वेश्चन रखा था। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर भी लिए कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्स when the TDS is also borne by the payer, जैसे मैंने एग्जांपल दिया देवेंद्र सर और अरुण सर का, उससे कवर किया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो ट्रांजैक्शन ऐसा लगता है देखने से कि वो बेनिफिट दिया जा रहा है, लाइक आपको सेल के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, चाहे वो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट हो या ट्रेड डिस्काउंट हो, तो क्या वो भी 194R का पार्ट बनेगा? सो इन्होंने अपने गाइडलाइन में ये कवर किया है कि वो जो डिस्काउंट आप ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या बल्क डिस्काउंट आप जो भी दे रहे हैं, these discount are also benefit and perquisite, but for the purpose of convenience हम उसको 194R के दायरे से बाहर कर रहे हैं, सो उसमें 194R नहीं लगेगा। दूसरा सिचुएशन निकल के आता है क्या सैंपल के ऊपर भी 194R लगेगा? सो मान लीजिए कि आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, आपने बोला कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे मुझ पे सूट करेगा या नहीं करेगा, तो मुझे कोई आपका डेमो वर्जन है तो आप मुझे दे दो। हाँ, उन्होंने आपको डेमो वर्जन दे दिया। जैसे पेंट की कंपनी में बहुत ज्यादा होता है, अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन पेंट की कंपनी में एक प्रोटोटाइप वो पेंट का डब्बा रखते हैं, आप जाते हैं उनसे वो डब्बा लेते हैं और डब्बा आप पेंट करके घर पे टेस्ट करते हैं, टेस्टर की तरह उसको बोलते हैं, टेस्टर है ये। जब वो टेस्ट किया होता है हाँ ये देखने में ठीक लग रहा है, तो फिर आप कहते हैं ठीक है ये सैंपल ओके, आप दे दो मुझे, whether that sample is covered। So technically speaking जो इन्होंने लैंग्वेज लिखा है, यस सैंपल इज आल्सो कवर्ड, लेकिन इसका प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेड ऐसा है जहां पे कि बिना सैंपल का नहीं क्लाइंट को कन्विंस किया जा सकता। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, आप जब मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो आपके सामने वो ओरिजिनल फोन नहीं रखता, वो डेमो वर्जन रखता है, वो डिस्प्ले फोन रखता है, उसका भी वैल्यू है और वो कंपनी ने उनको दिया है, तो क्या उसका वो सैंपल में कवर होगा? और वो सैंपल में कवर होगा तो क्या उसके ऊपर 194J लगेगा? टेक्निकली स्पीकिंग सो नहीं लगना चाहिए, लेकिन अभी तक का जो लैंग्वेज उसको ऐसे पढ़ के लगता है कि उसके ऊपर भी कवर। दूसरा चीज, आप कार की दुकान, कार के शोरूम में जाते हैं तो एक डेमो कार होता है जिसके ऊपर वो आपको डेमो देते हैं, या तो कहते हैं ये सैंपल कार है, उसको वो सेल नहीं करते, वो डेमो देने के लिए रखते हैं, जो कि उनको डिस्काउंटेड प्राइस से मिलता है कंपनी से, तो क्या उसके ऊपर 194R एप्लीकेबल होगा? सर कुछ ट्रेड ऐसा है जहां पे कि आप विदाउट सैंपल डिस्प्ले नहीं कर सकते, क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकते, तो उस केस में लगेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल गया कि क्या जो मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं, जो डॉक्टर्स हैं,
उनको जब कोई कंपनी, मेडिसिन कंपनी फ्री में सैंपल देती है तो क्या वो भी बेनिफिट और परक्विजिट में काउंट होगा? सो जो डॉक्टर हैं वो उस बेनिफिट पर उसका जो फ्री सैंपल है क्या करते हैं? अगर उसको सेल कर देते हैं तो हम कह सकते हैं यस दैट इज बेनिफिट एंड दे कन्वर्टेड इट टू मनी। अगर वो सेल नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? क्योंकि तो अगर एक जगह ये आया था डिस्कशन में कि नहीं, जब हम तो उनको इसलिए देते हैं कि वो टेस्ट करें अपने इसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर। हालांकि मेडिकल काउंसिल इसको परमिशन नहीं देता कि कोई डॉक्टर क्लिनिकल टेस्ट करे किसी पेशेंट के ऊपर, तो दैट इज नॉट अलाउड। सो वो ऐसे भी अलाउड नहीं होगा, तो खत्म। तो दैट सैंपल कैन बी सेड कि जो आप दे रहे हो ये जस्ट उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए दे रहे हो, सो इट इज कवर्ड। Notional interest on the interest free loan to the partner by the firm. So एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें पार्टनर ने लोन दिया हुआ है और उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसको पता है छोटी फॉर्म है, अभी शुरुआत की है, अभी ये कहाँ से निकाल के देगा मुझे। तो उस केस में क्या ये भी कवर होगा बेनिफिट और परक्विजिट में? क्योंकि हमने उससे इंटरेस्ट मुझे मिलता, अगर मैं कहीं और लगाता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, लेकिन मैं कहीं और नहीं लगा कि यहाँ लगाया जहाँ मेरा इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, तो क्या ये मेरा बेनिफिट है? कोर्ट ने क्लियर मना कर दिया नहीं, दिस इज नॉट बेनिफिट और परक्विजिट। वेदर वेवर ऑफ लोन गिवन बाय द सप्लायर, या फिर राइट ऑफ कर दिया आपने, तो क्या लोन को वेव करना या डेटर्स को राइट ऑफ कर, सॉरी डेटर्स को राइट ऑफ करना, उस केस में क्या होगा? आपका वो इनकम का पार्ट बनेगा, आपने उसको बेनिफिट दे दिया। सो इन दीज केसेस, अगर तो वेरी इसमें बहुत सिंपल तरीके से समझा सकता है कि अगर आपने किसी को सेल किया था विद द इंटेंशन कि पैसा मेरा रियलाइज होगा, सब्सिक्वेंटली ड्यू टू सम रीजन आपने पूरा एफर्ट किया बट वो पैसा रियलाइज नहीं हुआ, तो आप उसको राइट ऑफ कर दें। इट कैन नॉट बी सेड कि मैं उसको बेनिफिट दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं मैं आपको बेनिफिट दे देता हूँ, ये आपका इंटेंशन कभी नहीं था। और अगर आप अपने बुक्स में उसको राइट ऑफ कर भी रहे हैं तो आप उसको नहीं बताने जाते कि देखो ये मैंने राइट ऑफ कर दिया आपका, और ये आपको बेनिफिट का ये 194R का टीडीएस भी काट के जमा करा दिया, ऐसा नहीं होता। सो दैट बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट एज पर सेक्शन 194। सर क्वेश्चन Q&A के अंदर दिनेश जैन सर ने भी दोबारा एक क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग द सेम 190R। If a company provide tour package free for the family to distributor, here 194R will apply. Yes sir. Whether distributor will file GST on monetary value of such benefit, I have joined late. I don't know whether you have taken this part or not. So sir, आप बिल्कुल भी लेट नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जीएसटी का किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जीएसटी बिल्कुल नहीं करता, तो जीएसटी का कुछ आइडिया नहीं है। मुझे जीएसटी का उतना ही आइडिया जितना सर्कुलर में उन्होंने लिखा है। अगर कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर है हमारे ग्रुप में तो वो बता सकते हैं, वो उसका आंसर कर सकते हैं कि ये जो बेनिफिट या परक्विजिट आप दे रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे नहीं आइडिया इसका, कोई भी। ठीक है सर? ठीक है सर। तो whether the benefit of perquisite only ये हमने डिस्कस कर लिया, whether it can be services also। so ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आया सर, क्या ये सर्विस को भी कवर करता है? क्योंकि अगर आप लैंग्वेज देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला प्रोविजो क्लॉज में ओनली इन काइंड और पार्टली इन काइंड पार्टली इन कैश। तो होता है कि काइंड का मतलब क्या होता है? और काइंड मतलब कुछ भी गुड्स, तो नहीं, काइंड मतलब कुछ भी हो सकता है, सो एनी काइंड। So it may be services also, like अगर आपने किसी को होटल में एक दो रात स्टे करने के लिए अलाउ कर देंगे, आप होटल में रह जाना, मैं पे कर दूंगा, कोई बात नहीं, तो वो आपकी तरफ से वो बेनिफिट हो गया उनको, तो दैट इज आल्सो कवर्ड। हालांकि होटल का जो सर्विस है वो सर्विस में कवर होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज निकल गया है कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्विस को भी गिफ्ट या किसी को बेनिफिट दिया सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई फ्रेंड है जिसको किसी लॉयर की सर्विस की जरूरत है, तो मैंने देवेंद्र जी को अप्रोच किया कि सर आप उसको सर्विस दे दो। देवेंद्र जी ने बोला ठीक है, आपका फ्रेंड मेरा फ्रेंड, मैं दे देता हूँ उसको सर्विस। उस जो मेरे फ्रेंड ने सर्विस लिया उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा, जो भी चार्ज पे करना पड़ा वो मैंने देवेंद्र जी को किया, पहला सिचुएशन।
उस केस में क्या ये एप्लीकेबल, ये 194 आर एप्लीकेबल होगा? टू माय माइंड यस होगा। दूसरा सिचुएशन कि देवेंद्र जी ने भी मुझे बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपका फ्रेंड मेरा फ्रेंड, मैं कुछ नहीं चार्ज करूंगा आपसे, वो सिचुएशन में भी 194 आर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? सो देवेंद्र जी का जो सर्विस है उस केस में देवेंद्र जी ने फ्री प्रोवाइड कराया है, तो यस उसमें भी 194 आर एप्लीकेबल होगा। अब दूसरा सिचुएशन ये अराइज होगा कि अगर ये दोनों ही केस में 194 आर एप्लीकेबल होगा तो इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? बोला कि वैल्यू करने के लिए सिंपल उन्होंने बता दिया फेयर मार्केट वैल्यू, बट फेयर मार्केट वैल्यू इज फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स, सॉरी कैपिटल गुड्स उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। व्हाट इफ इट इज नॉट अ कैपिटल गुड्स, और ये जो सर्विस हम ले रहे हैं इट इज नॉट अ कैपिटल गुड्स, उस केस में क्या होगा? सो बोला फेयर मार्केट वैल्यू का जो नॉर्मल मीनिंग है कि जो कॉमर्शियल पैरेलेंस में आप नॉर्मल मार्केट में ये फेच करता है, कि कैसे पता चलेगा? सो देवेंद्र जी का जो प्राइसिंग है और जो दूसरे सी का जो प्राइसिंग होगा वो डिफरेंट हो सकता है, और ये होगा ही होगा। तो उस केस में क्या मैं वैल्यू कैसे करूंगा? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जी वैल्यूएशन मैकेनिज्म यहाँ पे फेल हो गया, इसीलिए मेरा टीडीएस का सेक्शन भी अप्लाई नहीं होगा? सो एक और थॉट निकल के आता है कि अगर रेसिडेंशियल हाउस किसी को गिफ्ट कर दिया, अगर किसी को रेसिडेंशियल हाउस गिफ्ट कर दिया, सो फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लाइंट है जो बिल्डर है और उसने आपको बोला कि ठीक है आप मेरे काम तो आप करते ही हो, चलो मैं आपको, रिलेशन हमारा इतना पुराना है, मैं आपको एक 2 रूम का सेट गिफ्ट कर देता हूँ। उसका वैल्यू लेट से 50 लाख रुपीस तो हमने गिफ्ट कर दिया उसको। अब ये जो गिफ्ट किया है ये किस सेक्शन में कवर होगा? 56(2)(10) में कवर होगा? 194 आर लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर 56(2)(10) लगेगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा? क्या इसके ऊपर 194 IA में उस पर्सन को जो पेयर जो गिवर है उसको टीडीएस काटना था ऑन द नोशनल वैल्यू, या उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है? स्पेसिफिक सेक्शन है 194 IA इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, वो ट्रांसफर कर रहा है इमोबल प्रॉपर्टी को फॉर ए कंसिडरेशन, बट यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, वो फ्री में दे रहा है। या सपोज कीजिए वो बोलता है चलो ठीक है 10 लाख दे दो, मैं आपके नाम पे कर देता हूँ उसको, तो अगर 10 लाख में दे दिया तो क्या 40 लाख का जो डिफरेंशियल अमाउंट वो गिफ्ट हो गया? या वो 56(2)(10) में चला गया कि उस रिसीवर के हैंड में डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर उसको टैक्स लग जाएगा, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? सिमिलरली अगर क्रिप्टो दे दिया गिफ्ट में, देवेंद्र जी ने क्रिप्टो दे दिया, तो 194 आर एप्लीकेबल होगा, 194 एस एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इन्होंने ट्रांसफर किया है मुझे देते समय, अपना क्रिप्टो ट्रांसफर किया। अगर वो ट्रांसफर किया तो क्या वो ऐसे 194 एस में टीडीएस काटेंगे? वो कब काटेंगे? जब मैं इनको कुछ पेमेंट करूंगा तो तब कटेगा, या जब ये मुझे पे कर रहे हैं तब काटेंगे? और उस समय 194 आर का कैसे इम्प्लीकेशन है? वैल्यूएशन की बात तो नहीं, अभी तो मैं देखता हूँ, मैं वो सिचुएशन पे ला रहा हूँ जहाँ पे 2 सेक्शन साइमल्टेनियसली अप्लाई हो जाता है, और जहाँ पे एक सेक्शन स्पेसिफिक सेक्शन है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, तो क्या 194 आर उसमें प्ले करेगा या नहीं करेगा? बिकॉज 194 आर इज अ जनरल सेक्शन, हाउएवर 194 IA 194 S और जो भी अलग सेक्शन हैं वो सब स्पेसिफिक सेक्शन है पर्टिकुलर सिचुएशन को कवर करने के लिए। जैसे आपको लॉटरी निकला, आपको मिल गया बेनिफिट, आपका बेनिफिट हो गया, आप शॉप में गए कुछ खरीदने के लिए, उन्होंने बोले जी आप एक काम करो, यहाँ पे हम लकी ड्रॉ कर रहे हैं, आप ये लकी ड्रॉ में अपना डालो, आप जो आ गया सो अगर कुछ मिला तो आपका। मैं लकी ड्रॉ किया, मुझे मिल गया। अब ये जो मुझे मिला है, सपोज जैसे मैंने किया तो मुझे एक, एक, एक समझ लीजिए 30-40 हजार का छोटा सा गिफ्ट मिल गया, तो जो गिफ्ट मिला वो 194 आर में जाएगा या 194 बी में जाएगा? क्या ये कह सकते हैं तो लॉटरी से निकला है? लॉटरी का मतलब क्या हुआ? सो 194 बी लॉटरी वर्ड यूज करता है, लॉटरी और गेम और एनी क्रॉस वर्ड पजल उस टाइप का सिचुएशन को कवर करता है, या ये 194 आर उसमें एप्लीकेबल होगा? तो हम लोग वो सिचुएशन को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे कि 2 सिमिलर सिचुएशन, 2 सेक्शन सिमिलरली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक हमने कवर किया। अब चैलेंजेस। सो हमने कॉन्फ्रेंस का सिचुएशन को कवर कर लिया, एट्रीब्यूशन को कवर कर लिया,
एट्रीब्यूशन में हालांकि इन्होंने एट्रीब्यूशन में कोई रूल नहीं दिया कि कैसे होगा, सिर्फ इन्होंने बोला है हम एट्रीब्यूट करेंगे, कैसे करेंगे उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए कि आप कैसे उसको एट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अभी तो टीडीएस काटने का जिम्मेदारी आपके ऊपर आ चुका है, तो कैसे करेंगे। तीसरा सिचुएशन है कि अगर कोई कंपनी लेके जा रही है कॉन्फ्रेंस के लिए, तो आप कह सकते हो जी इसमें जो भी आपको मिल रहा है दैट इज योर बेनिफिट। लेकिन अगर मैं डेलीगेट फीस पे करके जा रहा हूँ, जैसे अगर आईसीएआई भी रेजिडेंशियल कोर्स कराती है तो कहते हैं फीस पे करना पड़ेगा आपको, हालांकि ऑफ कोर्स वो फीस वो जो सर्विस दे रहे हैं उससे बहुत कम रहता है, लेकिन आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो जो अगर मैं फीस पे करके जा रहा हूँ उसके बदले में मुझे कुछ भी मिल रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये तो जो 194 आर का पार्ट नहीं, क्योंकि मैंने पे किया तब मुझे ये मिला है, देयर इज नो बेनिफिट पर से। सैंपल आर समटाइम इंपॉर्टेंट फॉर सेल, ये हमने डिस्कस कर लिया है। 199 का जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ये बोला कि 194 आर में जो टीडीएस कट रहा है कोई जरूरी नहीं है कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम वो दिखा रहा हो, या वो उसके हैंड में इनकम भी हो। एज्यूमिंग आपको कोई कैपिटल आइटम मिल रहा है, यू कैन से दैट दिस इज अ कैपिटल रिसीट एंड नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सो इफ इट इज अ कैपिटल रिसीट एंड नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो क्या उस केस में टीडीएस तो कट गया आपका और आपने इनकम में दिखाया नहीं उसको, तो अगर इनकम में नहीं दिखाया तो आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा। तो क्रेडिट लेने के लिए ये कहता है कि सेक्शन 199 है, वो कहता है कि हम आपको उस साल में क्रेडिट देंगे जिस साल में ये इनकम एसेसेबल होगा, लेकिन मेरा इनकम तो कभी एसेसेबल ही नहीं होगा, कहता फिर आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा। तो इन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज 199 में जाके नहीं किया हुआ है। ओके, ये मैंने कुछ केस स्टडीज बनाए हैं आपके लिए, आप इसको देखिए एक बार। ये मैंने अपने तरफ से जो कवर करना था 194 आर के अंदर वो मैंने किया। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, फिर मैं थोड़ा 194 एस के ऊपर आपसे डिस्कस कर लूँ। 194 आर में अभी और भी क्वेश्चन होना चाहिए वैसे, अगर कुछ है तो मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। सर 194 एस कर ले। Yes, sir. Please continue. सर ओके, 194 एस कर लेते हैं। Yes, sir. सो 194 एस का जो सेक्शन है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी तक इन्होंने ये नहीं बोला कि जो क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन है वो लीगल है या नहीं, वो अभी तक कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो हम टैक्स करेंगे, ठीक है। एक लॉजिक हमें समझ में आता है कि इवन इन केस ऑफ इलीगल इनकम द टैक्स वुड बी देयर। सो इसलिए इन्होंने अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया कि whether it is legal or illegal, so transaction generally allowed है as a legal transaction or not, ये इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। इन्होंने ये जरूर बता दिया कि what is virtual digital asset। so generally हम लोग इसको समझने के लिए कैसे समझते हैं कि क्रिप्टो एसेट या बिटकॉइन की तरह समझते हैं, बट इन्होंने जो डेफिनेशन दिया दैट इज वाइड इनफ इन द सेंस 247 में इन्होंने 247 कैपिटल में इन्होंने कवर किया है, जिसमें इन्होंने ये बोला कि जितना भी आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल एसेट है, डिजिटल आइटम है और जिससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स है, वो सारे उसमें कवर होते हैं। बहुत सारा इससे डाउट्स भी क्रिएट हुआ, जैसे कि अगर मैं मेरा पेटीएम में एक्यूमुलेटेड पॉइंट मुझे मिलता है जिसको मैं बाद में रिडीम कर लेता हूँ, तो क्या वो भी मेरा वर्चुअल डिजिटल एसेट है। या मैं फ्लाई करता हूँ, मैं रेगुलर फ्लायर हूँ और मुझे हर फ्लाई के ऊपर कुछ पॉइंट मिलते हैं जिसको मैं बाद में रिडीम करके 2-3 ट्रिप फ्री में ले लेता हूँ, तो क्या वो भी मेरा वर्चुअल डिजिटल एसेट है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट को जिस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है, ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ को कवर करना चाह रहे हैं इसमें, लेकिन जो पर्पस है इसका वो बहुत ही स्पेसिफिक टाइप से अगर देखा जाए तो ये जनरली क्रिप्टो ट्रांजेक्शन और बिटकॉइंस को कवर करना चाहते हैं। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को मैं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, वो कैसे डील करती है, मैं शायद उसके लिए सही पर्सन नहीं हूँ वो बताने के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी टेक्निकल। मैं अपने समझने के लिए इसको ऐसा समझता हूँ कि जहाँ पे अगर क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन हुआ है तो क्या उसके इनकम के ऊपर टैक्सेशन होगा या नहीं होगा, पहला सिचुएशन।
दूसरा सिचुएशन अगर होगा तो टीडीएस का क्या एप्लीकेशन आएगा। सो टीडीएस तो 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होगा। अभी हम लोग वो समझते हैं जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं करंट ईयर में, करंट ईयर में हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम 1/4/2021 से 1/4/31/2022 तक कर रहे हैं। अगर उस पीरियड में किसी का कोई क्रिप्टो से या बिटकॉइन से कोई इनकम अराइज हुआ है तो क्या उसके ऊपर हम टैक्स भरेंगे या नहीं भरेंगे, अभी जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें। एनी व्यू ऑन दिस? अभी जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें किसी एसएससी का लास्ट ईयर में अगर क्रिप्टो से इनकम हो रहा है तो वो मेरे इनकम का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए? एनी आंसर ऑन दिस? Yes, it is taxable. Yes. So general हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि yes, it is taxable because आपका इनकम तो है, इसमें तो कोई दुराई नहीं है, इनकम है। और अगर इनकम है तो टैक्सेबल भी होगा। कैसे टैक्सेबल करेंगे, क्या रेट पे करेंगे? तो हम लोग अभी तक क्या ट्रीटमेंट करते थे, वेदर इट इज अ बिजनेस इनकम, आप अगर इसका रेगुलर ट्रेड कर रहे हो देन हम कह सकते हो ये तो आपका बिजनेस का इनकम होगा। तो अगर बिजनेस का इनकम होगा तो बिजनेस में लेके जाऊंगा, तो क्या खर्चा भी अलाउ होगा? सो अभी तक हम लोग खर्चा भी अलाउ कराते हैं। अगर ये मेरा कभी कदार में करता हूँ और कुछ जनरल इनकम आ गया तो कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जा रहा है, अदर सोर्सेज में जा रहा है तो 57 में जो मेरा खर्चा मुझे मिलने वाला है मैं वो अलाउ कर। लेकिन उन सबको खत्म करते हुए इन्होंने बोला, स्पेसिफिक सेक्शन दे दिया कि अगर आप किसी वर्चुअल एसेट में डील कर रहे हो, वर्चुअल डिजिटल एसेट में आप डील कर रहे हो तो 115 BBH सेक्शन है जिसके अंदर में आपको उसका जो भी रिसिप्ट है वो आपको इनकम में दिखाना है, और जो भी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में सारे नहीं, सिर्फ एक ही, ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपको वो दिखाना है। तो आपको मैं उतना डिफरेंस माइनस करके आपका प्रॉफिट के ऊपर 30% का टैक्स लगा दूंगा, बस और कुछ नहीं करना। इसको सरचार्ज एजुकेशन से जैसे लगता है लगे, और कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे एक सिचुएशन निकल के आया कि साहब सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहते हैं वेदर वर्चुअल डिजिटल एसेट इज अ कैपिटल एसेट और नॉट अ कैपिटल एसेट। सो अगर ये कैपिटल एसेट है तो आप मुझे बता दो। तो इन्होंने कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में इसको इंक्लूड नहीं किया। सो कैपिटल एसेट जो 214 का जो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन है उस लिस्ट में इसको नहीं रखा है, इसको सेपरेट लेकर आए। जब फाइनेंस बिल आया था तो उसमें इन्होंने 5627 में जाके नीचे आइटम लिस्ट किया था जिसमें कि 10 नंबर और 11 नंबर में वर्चुअल डिजिटल एसेट को भी इंक्लूड किया गया था। लेकिन जब एक्ट बन के आया तो उसमें से इन्होंने वो 5627 में से उसको हटा दिया। अब हटाने से क्या फर्क पड़ा, जो पहले 5627 था वो ये कहता था जी कोई भी प्रॉपर्टी जो कैपिटल एसेट है वो नीचे दी गई है, वो नीचे दी गई है। इसका मतलब 56 को अगर मैं पढ़ता हूँ 56 to 10, 56 to 7 को, तो वो डील करता है कैपिटल एसेट के बारे में, वो डील करता है कैपिटल एसेट के बारे में। तो अगर वो कैपिटल एसेट को डील कर रहा है तो इन्होंने वहां से ये बोल के हटा दिया जी अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये बोलेंगे तो कैपिटल एसेट है तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। वो क्या डेफिनेशन था, प्रॉपर्टी के अंदर में आ रहा था, प्रॉपर्टी के अंदर, so whether it is property or not। so प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने बोला प्रॉपर्टी मींस द फॉलोइंग कैपिटल एसेट ऑफ द एसएससी नेमली। सो द मोमेंट जैसे ही कहते हैं प्रॉपर्टी है तो वो कैपिटल एसेट के साथ लिंक हो जा रहा है। अब कैपिटल एसेट का जो डेफिनेशन दिया हुआ है 214 में उसमें ये कहते हैं जी प्रॉपर्टी, उसमें भी प्रॉपर्टी को कवर किया गया है। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा वेदर इट इज प्रॉपर्टी और नॉट। बट टू माय माइंड यस इट इज प्रॉपर्टी। इफ इट इज प्रॉपर्टी देन इट इज अ कैपिटल एसेट। इफ इट इज कैपिटल एसेट देन एक सिचुएशन और निकल के आता है कि क्या मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो एक्सपेंडिचर के लिए इन्होंने कंपटीशन मैकेनिज्म में इन्होंने 48 को कवर नहीं किया, ये 48 से बाहर रखा है। 115 BBH सेक्शन डाला जिसमें बोला कि हम कोई खर्चा अलाउ नहीं करेंगे, बट इंडेक्सेशन इज नॉट एक्सपेंडिचर। सो 115 BBH का जो लैंग्वेज है वो खर्चे की बात करता है, जबकि इंडेक्सेशन इज नॉट खर्चा। तो क्या मैं उस केस में बोल सकता हूँ कि आप तो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो, तो मैं तो इंडेक्सेशन इज नॉट एक्सपेंडिचर, तो आप मुझे ये अलाउ कर दो। लेकिन अभी तक जो डिस्कशन से निकल के आ रहा है कि ये वो भी अलाउ
नहीं होगा। BBH में सर इन्होंने लैंग्वेज दिया है वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम दिस और नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम बात करते हैं, तो अगर मैं 48 को रेफर करूं तो कहता है जी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही रहता है वो मेरा, बट वो इंडेक्स कॉस्ट हो जाता है। तो मैं और कोई खर्चे आपसे नहीं मांग रहा, लेकिन मुझे वो इंडेक्स कॉस्ट मिलना चाहिए। सो क्या वो मिलेगा? तो अगर ये प्रॉपर्टी है तो मिलेगा, प्रॉपर्टी है तो कैपिटल एसेट भी होगा, तो जरूर मिलेगा। लेकिन कंप्यूटेशन पर्पस के लिए, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए उसको कैपिटल गेन सेक्शन में नहीं रख के उसको बाहर रखा गया है। बट अगर मैं इसकी बात करूं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो यस आपको मिल सकता है, बट आगे डेफिनेटली इसके ऊपर मैटर कोर्ट में जाएगा और डिस्कशन काफी डिटेल में होगा इसके ऊपर। अब इन्होंने बोला कि क्या रेट पे टैक्स होगा। सो दैट इज अनदर सिंपल पार्ट की भाई अगर आपको 194S में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इन्होंने ये तो बता दिया कि आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा। अब टीडीएस कब कटेगा, क्योंकि टीडीएस काटने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का होना बहुत जरूरी है। और अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ तो कौन कौन सा सिचुएशन को ये कवर कर रहे हैं, क्या उस ट्रांजैक्शन में मैं विदाउट कोई पेमेंट किए हुए भी उसके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है क्या। सो इन्होंने जो लैंग्वेज लिखा है वो उसको एक बार मैं देखता हूँ कि क्या इन्होंने लैंग्वेज लिखा है। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल ऑफ पेइंग टू एनी रेसिडेंट। सो रेसिडेंट जैसे बोल रहे हैं, इसका मतलब नॉन रेसिडेंट को बाहर कर रहे हैं। बाय वे ऑफ कंसिडरेशन, सो बाय वे ऑफ कंसिडरेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग बाय वे ऑफ कंसिडरेशन। जैसे ही कंसिडरेशन वर्ड यूज कर दिया तो क्या हम ये कह सकते हैं कि साहब ये 194R में जो हम लोग सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी को गिफ्ट में दे दिया तो ये 194R में जाएगा या S में जाएगा। द मोमेंट ये गिफ्ट में दे दिया तो ये एस के दायरे से बाहर हो गया, क्योंकि एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी रेसिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन। इसका मतलब कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए यहाँ पे। अब एक सिचुएशन और निकल के आता है कि अगर मान लीजिए कोई बिटकॉइन है जो 100 रुपीज का है, अरुण सर ने वो 100 रुपीज का बिटकॉइन राजेश सर को 50 रुपीज में दे दिया। सो दिस इज फॉर ए कंसिडरेशन तो हुआ है। अगर वो फॉर ए कंसिडरेशन हुआ है तो 194S भी लगेगा, लेकिन 50 रुपए का बेनिफिट भी दे रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मली 50 रुपीज में नहीं बिका, वो 100 रुपीज में जाता, तो इन्होंने उनको 50 रुपए का बेनिफिट दे दिया, तो क्या वो भी कवर होगा। सो टेक्निकली से वो भी कवर हो सकता है, बट अगेन डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट इज नॉट कवर्ड। उन्होंने बोला डिस्काउंट को हम कवर नहीं करेंगे। एक और सिचुएशन इसमें लेकर आइए, at a time of credit of such sum to the account of the resident or a time of payment। so जब क्रेडिट कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं किसको, जिसको मुझे पे करना है। अब जितना मैं क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को समझता हूँ, जब भी हम लोग इस तरह को ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये सारा एक्सचेंज का थ्रू रूट होता है। क्या अरुण सर अपने वॉलेट से डायरेक्ट क्रिप्टो राजेश सर के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? तो मैंने इसको जब टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि हाँ ये पॉसिबल है। जैसे हम पेटीएम में वॉलेट से अपने वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी तरह हम अपने वॉलेट का क्रिप्टो को दूसरे के वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो मुझे पता है कि ये ट्रांजैक्शन अरुण सर और राजेश सर के बीच में हुआ है। चूंकि अरुण सर ने बेचा है और राजेश सर ने खरीदा है, तो जो पेयर है यानी कि राजेश सर पेमेंट करने वाले हैं तो वो टीडीएस काट के जमा करा दें और बाकी का अरुण सर को पे कर दें। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के थ्रू रूट हो रहा है, जहां पे अरुण सर को ये नहीं पता कि जब मैं सेल कर रहा हूँ एक्सचेंज को तो वो कॉरेस्पॉन्डिंगली खरीदने वाला कौन है, या जो खरीद रहा है उसको नहीं पता कि जो जिससे मैं खरीद रहा हूँ उसको बेचने वाला कौन है, उस केस में 194S का एप्लीकेबिलिटी के लिए इन्होंने डिटेल में गाइडलाइन दिया है और उन्होंने एक्सचेंज के ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। आपको देखना है, अगर आपके थ्रू रूट हो रहा है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, अगर ब्रोकर के थ्रू रूट हो रहा है देन ब्रोकर इज रिस्पॉन्सिबल, और अगर डायरेक्ट पार्टी टू पार्टी हो रहा है देन पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल। बट सारे ट्रांजेक्शन को इन्होंने कवर किया है। उसके बाद बोले टीडीएस का रेट क्या होगा। सो बोला 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। अगर ये काइंड में दे रहे हैं यानी कि मैं क्रिप्टो लेके क्रिप्टो दे रहा हूँ तो क्या होगा, तब भी 194S लगेगा। वैल्यूएशन
के लिए, वैल्यूएशन के लिए आप जहां से भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है, देन यू नो द प्राइस। अगर आप आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर आप आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो भी आपको पता है कि आज के डेट में इस क्रिप्टो का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। तो क्रिप्टो लेकर आप क्रिप्टो एक्सचेंज दे रहे हैं, देन इट इज अ बार्टर, बट इन दैट केस ऑल्सो आपका ये एप्लीकेबल 194S एप्लीकेबल होगा, partly in cash, partly in kind. When the cash is not sufficient to cover, then the party has to ensure the tax has been deducted and deposited. So ये सब चीज before releasing, ये सिमिलर जो हमने 194R में पढ़ा है वो सिमिलर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें, द प्रोविजन ऑफ 203A एंड 206AB shall not apply। लेकिन वो किस केस में? सिर्फ स्पेसिफाइड पर्सन केस में। और 203A मतलब आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। तो कैसे करेंगे? तो 194IA का जैसे हम लोग करते हैं चालान कम रिटर्न, वैसे ही इसके रिटर्न में फाइल हो जाएगी। 206AB जहाँ पे कि वो डिफॉल्टर है रिटर्न का, तो हम वो भी टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम वो नहीं टेस्ट करेंगे तो क्या 206AA टेस्ट करेंगे? और 206AA टेस्ट करना है, क्योंकि उस केस में उसको आपको देखना है, उसका पैन नहीं है तो फिर हायर रेट पे टीडीएस कटेगा। हालांकि इन्होंने इस सेक्शन में ये नहीं बताया कि अगर 206AA अप्लाई होता है तो किस रेट पे कटेगा। स्पेसिफाइड पर्सन किसको बोलते हैं वो भी इन्होंने बताया कि स्पेसिफाइड पर्सन किसको बोलेंगे। तो वही जो हमने 194R में डिस्कस किया था, इंडिविजुअल HUF, और उसका अपना बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ अगर बिजनेस कर रहा है, 1 करोड़ से कम है, प्रोफेशन कर रहा है 50 लाख से कम है, तो वो उसको टीडीएस काटने के लिए इन्होंने बोला कि पहला चीज तो बोला कि 206A अप्लाई, 203A और 206AB अप्लाई नहीं करेगा। और दूसरा इन्होंने बोला कि टीडीएस काटने के लिए थ्रेशोल्ड उनका थोड़ा बढ़ा दिया, जैसे कि 50,000 तक अगर वो डीलिंग कर रहे हैं उसके ऊपर तभी वो टीडीएस अप्लीकेबल होगा। अदर केसेस में ये सिर्फ 10,000 का लिमिट है। इसका मतलब अगर अरुण सर तो राजेश सर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस केस में 50,000 के ऊपर का अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तभी 194S लगेगा, क्योंकि दोनों हम ये कह सकते हैं कि दे आर इंडिविजुअल और दो अपना बिजनेस कैरी कर रहे हैं। और लेकिन वो सब्जेक्ट टू कि दे आर स्पेसिफाइड पर्सन, बट यहाँ पे अगर इनका टर्नओवर इज मोर देन 50 लाख, जो कि नेचुरली होगा, देन उस केस में वो फेल हो जाएगा। सो 194S को टेस्ट करने के लिए स्पेसिफाइड पर्सन का एक अलग से इन्होंने डाला है। और जो कि स्पेसिफाइड पर्सन को अगर आप देखें तो अदर सेक्शन ऑफ 194 का जो सीरीज है वो उनमें भी कवर्ड है। इसमें भी इन्होंने सेम चीज बोला कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी आएगी तो हम गाइडलाइन लेकर आएंगे, जो कि ये गाइडलाइन लेकर आए भी, और इन्होंने सारा कुछ बताया कि इस गाइडलाइन के थ्रू इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट की है एक्सचेंज के ऊपर और ब्रोकर के ऊपर, अगर डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है देन जो पार्टी पे कर रही है उसको टीडीएस रिटर्न करना है। सो 194R बेसिकली अगर आप देखा जाए तो यही सेक्शन है। इसमें जो मैंने ब्रीफली कवर किया, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में से नहीं आ रहा हूँ, बिकॉज इसका ट्रांजैक्शन इसके लिए जो गाइडलाइन है वो काफी डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है। और उस गाइडलाइन को लाने के बाद फिर से दोबारा एक सर्कुलर लेकर आए जिसमें इन्होंने और भी उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में उन्होंने ये बोला कि अगर ये एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है तो जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर है वहां पे 194O लगता है, तो क्या 194S का एप्लीकेबिलिटी वहां पे हो सकता है? क्योंकि जो एक्सचेंज है वो कैन इट बी सेड कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो उस केस में इन्होंने ये बोला, notwithstanding anything contained in 194O in case of transaction to which the provision of said section, अगर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो गया तो 194O एप्लीकेबल नहीं होगा। सो फर्स्ट राइट 194S को दिया गया। so, अगर 194S सेटिस्फाई करता है देन उस केस में 194O चाहे वो सेटिस्फाई भी कर रहा हो तब भी मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो इस साल के लिए जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो क्या हम 194BBH अप्लाई करेंगे? नहीं, क्योंकि वो सेक्शन एग्जिस्टेंस में नहीं था लास्ट ईयर के लिए, लेकिन इनकम टैक्सेबल होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है कि अगर ये मेरा एसेट है या प्रॉपर्टी है तो इसका साइटस कहाँ पे, उसकी कहाँ पे लोकेटेड माना जाएगा, क्योंकि
अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो जनरली क्या होता है, इनकम टैक्स में हम ये कहते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट या एसेट का टैक्सेशन वहां होगा ट्रांसफर करने का जहां पे ये सिचुएटेड होगा। अगर शेयर कैपिटल है तो हम कहते हैं जहां शेयर जिस कंपनी से वो वैल्यू डिराइव कर रही है वहां होगा। यानी कि जो शेयर है वो जब वैल्यू डिराइव करता है तो उसके अंडरलाइन में एक एसेट होता है। क्रिप्टो के अंडरलाइन में कोई एसेट सच नहीं है और ना ही इसका कोई अगर ये एक्सचेंज इसका यहाँ पे है लेकिन ये ओरिजिनेट कहीं और से हो रहा है तो हम ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है। अगर इंडिया के बाहर सिचुएटेड होगी तो भी क्या यहाँ पे टैक्स कवर, तब भी यहाँ पे कवर करेंगे टैक्सेशन के लिए या नहीं करेंगे। सो बहुत सारा अभी भी इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसके ऊपर डिपार्टमेंट को क्लैरिफाई करने की जरूरत है। So to my mind, I think sir, we have covered both 194R and 194S to the extent of my knowledge. इसमें हो सकता है कि कोई चीजें रह रही हो, so मैं उसके लिए डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले से। सर दीपक सर का एक क्वेश्चन उसमें डाला है Q&A में, और आई रिक्वेस्ट दीपक सर आपको मैं अलाउ करता हूँ पैनलिस्ट में एज ए, तो आप अपना अनम्यूट कर दीजिए और आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Hello, sir. Can you hear me? हाँ ये सर दीपक जी। Hello, Sana sir. Hello, sir. Which is regarding that OPE to the professionals. हम बात कर रहे हैं। J, we go by the seriatim. I think we should fall under 194J first. Then we should move to 194R. Am I correct? Yes sir. Yes sir. So generally क्या होता है 190 हम लोग क्या करते हैं 194 जो हमारा OPE होता है, अभी तक तो हम लोग 194J में ही इसको कवर कर रहे थे और उसके ऊपर TDS भी 194J में कट रहा है। अगेन वही चीज निकल के आती है कि स्पेसिफिक ओवर जनरल। सो सिंस प्रोफेशनल के केस में या जो भी जहाँ पे भी आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को आप रिम्बर्स करवा रहे हैं, सो मैं कहते हैं स्पेसिफिक सेक्शन है मेरा ऑलरेडी 194J में, तो आप उसके अंदर में TDS काटो, ना कि मेरा 194R में काटो। लेकिन इन्होंने जो सिचुएशन को कवर किया है ये कहना चाह रहे हैं कि इनका वो सिचुएशन है कि अगर आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ले रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बेसिकली उन्होंने रिइंबर्समेंट को कैप्चर किया है। अगर आप रिइंबर्समेंट ले रहे हैं तो उस केस को इन्होंने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस एग्जैक्टली ऐसे बोल के नहीं किया, बट इन्होंने रिइंबर्समेंट वाले सिचुएशन को कवर किया। बट अभी जो आपने पॉइंट रेज किया सर कि पहले 194J में ये टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि 194R में ऐसा कुछ नहीं बोला कि अगर कोई सेक्शन कहीं कोई आइटम कहीं और टैक्स हो गया तो यहाँ नहीं होगा, या कहीं और यहाँ हो रहा है तो कहीं और नहीं होगा। तो फर्स्ट राइट में उसको दूंगा जो मोर स्पेसिफिक सेक्शन। राइट सर। बाकी सर एक जो सर्कुलर है जून वाला, उसमें जो FAQ 4 है रिगार्डिंग कैश डिस्काउंट एंड क्वांटिटेटिव डिस्काउंट, आई मीन should be treated as composite or just illustrative? Because ये तो बड़ी जनरल प्रॉब्लम है पूरी इंडस्ट्री की कि भाई जो हमारे सैंपल्स या डेमो इक्विपमेंट्स जाते हैं, they can start selling it as कि आप 12 क्वांटिटी ले लो 10 की जगह। तो I mean, what would be your take कि भाई should be treated as what it is, or they're trying to capture a larger? सर इसमें देखिए इन्होंने अपने FAQ जो आपने रेफर किया क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने ऑलरेडी एग्जांपल लेके बताया कि अगर आपको 10 सामान के बदले 12 दे रहे हैं, हाँ जी, तो वो सिचुएशन को ही कहते हैं हम इसको कवर, देखिए टेक्निक इन्होंने इनके हिसाब से सारा कुछ कवर्ड है। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये बोल भी नहीं रहे खुल के कि नहीं हम इसको कवर नहीं कर रहे, तो इन्होंने ऐसे बोला कि जो डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट जो भी हम आपको दे रहे हैं ये वैसे तो बेनिफिट ऑफ परबेज है, पर अभी हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि आपको कि उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं ये तो बेनिफिट है ही नहीं। टेक्निकली स्पीकिंग कोई भी डिस्काउंट अगर मुझे मिलता है, मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ 100 रुपए का सामान खरीद, दुकानदार को मैं 90 रुपए दे रहा हूँ, 10 रुपए डिस्काउंट ले रहा हूँ उससे, तो उसका वो लेस रियलाइजेशन है। इट कैन नॉट बी सेड कि मुझे 10 रुपए का बेनिफिट मिलता है, सो दैट शुड नॉट बी कवर्ड। लेकिन इनका जो लैंग्वेज है उसके तरफ से कवर सारा कुछ कवर कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने साथ में बोला भी है कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अभी हम लोग उसको उसमें दायरे में 194R के दायरे में नहीं रखते। राइट। थैंक यू दीपक जी। अमित सर अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपने रेज हैंड करा है। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।
सर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड जो ये सर्कुलर है डिपार्टमेंट का, हम्म, जो कि बात करता है कि हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट परक्विजिट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। तो सर इसकी इस क्वेश्चन नंबर की जो लास्ट लाइन है उसमें ये लिखता है कि इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट ऑब्लिक परक्विजिट फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आर ऑफ द एक्ट। तो yes सर sir. यदि हम इसकी लैंग्वेज पढ़ें तो ये बिल्कुल क्लियर करता है इस चीज को कि सपोज करो कि किसी ने कार दी किसी को परक्विजिट के रूप में और 10 लाख रुपए की कार है और 10 लाख रुपए के अंदर 3 लाख रुपए जीएसटी है और 7 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, 7 + 3 है। तो ठीक है क्या तो 7 लाख पे टीडीएस काटेंगे, 10 लाख पे काटेंगे? सर तो जो क्या- लैंग्वेज है हमने डिस्कस भी किया था इसको। जो लैंग्वेज है वो ये कह रहा है कि जीएसटी के ऊपर आपको 194 आर नहीं लगाना। मतलब 7 इन्होंने ये लाख पे नहीं काटना है। हाँ, इन्होंने ये नहीं बोला कि जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा या जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। नहीं, सर यहाँ पे क्रेडिट की बात नहीं है, यहाँ पे ये है कि सपोज करो कि मैं एम्प्लॉयर हूँ या मैं एसएससी हूँ और मैंने किसी को 10 लाख रुपए की कार दी, तो यदि वो मार्केट से कार खरीदता तो उसको 10 लाख रुपए की कार पड़ती। मैंने आज उसको 10 लाख रुपए की कार दी तो मुझे तो टीडीएस 7 लाख पे काट रहे हैं ना इस सर्कुलर के मुताबिक। तो यस सर, यस। मतलब थोड़ा डाउट था, मतलब ये नहीं हालांकि सर, यहाँ पे इन्होंने ये मैंने बोला ना सर, इन्होंने जो ये गाइडलाइन लेकर आए जिससे डिफिकल्टी को रिमूव करना चाह रहे थे, उसने और डिफिकल्टी बढ़ा दी वही। बढ़ा दिया। और सर जो इसके अंदर क्या कहते हैं, थोड़ा सा मेरा 10-15 मिनट का मिस हो गया था, शायद आपने पॉइंट को कवर भी किया हो। तो इसके अंदर जो ये बेड डेप्थ के ऊपर जो टीडीएस काटने वाली बात है कि वो एक बड़ा इलॉजिकल है। नो सर, नो, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 194 आर, दैट इज वेरी मच क्लियर। और इसके ऊपर जजमेंट भी है कई सारे। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ सर। मान लीजिए मेरा कोई क्लाइंट है जिसका मैंने काम किया, 5 लाख का बिल मुझे लेना था। मेरा डे 1 में जब मैंने काम किया तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था कि मुझे इससे पैसे मिलेंगे। साल 2 साल 3 साल तक मैंने उसको फॉलो अप देके सर पैसे दे दो। फाइनली उसने नहीं दिया तो मैंने बोला हटाओ, इसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो मैं राइट ऑफ कर दिया। इसमें मेरा कोई उसको बेनिफिट या परक्विजिट देने का कोई इंटेंशन नहीं है मेरा। हाँ ठीक है, मतलब मेरा भी यही विचार है कि जो लोन वेवर है और दूसरी चीज और है, ये यूनिलेटरल राइट ऑफ है मेरा। मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं राइट ऑफ कर ले, तुम भी राइट ऑफ कर ले। ये मेरा यूनिलेटरल राइट ऑफ है। तीसरा चीज है जब मैंने राइट ऑफ किया तो मैंने इसका इनकम इसको मैं एक्सपेंडिचर में लेके गया। सब्सिक्वेंटली जब ये पैसा मुझे मिलेगा पार्टी से, हो सकता है 2 साल वापस आ जाए और पैसा मिल जाता है, तो मेरा इनकम में चला जाएगा। जब ये मेरा इनकम में जाएगा तो दैट कैन नॉट बी सेड ये परक्विजिट मैंने इसको दिया। ठीक है सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन सर? किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो रेज हैंड कर दीजिए। तो किसी भी मेंबर का और कोई क्वेश्चन नहीं है? सर अगर रह जाता है तो आप मुझे सेपरेटली भी कॉल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो सर कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को। अगर किसी के कोई क्वेश्चन आंसर अभी अगर हैं तो आप रेज हैंड कर दीजिए या आप Q&A में क्वेश्चन पुट अप कर दीजिए। सचिन सर विल आंसर योर क्वेरीज। I request to Arun sir. अजय जी, Yes, sir. आपकी कॉल I am audible, sir. वोट ऑफ थैंक्स वगैरह कीजिए सर आप। Sir, I am audible. First, tell me, sir. Yes sir, yes sir, yes. Some internet problem is there at my office. So now it's time to thanks our speaker, Mr. C.A. Sachin Sinha ji. थैंक यू सर। I, on behalf of Northex CA Study Circle, with our brother C. Arun Kumar Gupta ji, thanks to our speaker C. Sachin Sinha ji. He has discussed a lot of amendment and in 194R in income tax and also 194S. These are the latest sections which we should have great knowledge on that part. Since it is a great session, Mr. Sinha ji, I from my heart thank you very much
I also thanked our attendee. So now I present a memento to you, sir. It is a virtual memento. Virtual. Physical we will send you by post to you, sir. Yes. आपने बहुत समय निकाला और हमारे को एनलाइटन किया 194 आवर के, तो हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं जी. Thank you so थैंक यू सर. थैंक यू सर. रश्मि जी भी धन्यवाद कर रहे हैं. रश्मि मैम भी वो कह रही हैं इज़ वेरी एक्सप्लेन्ड इन द सिंपलेस्ट मैनर. एंड वाकई सर बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत ही सिंपल मतलब लैंग्वेज में आपने ये पूरा सेशन समझाया मेंबर्स को. इट्स वेरी नाइस. सर आपकी पेशेंस की भी थैंक्स करनी चाहिए. यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इन योर स्पीकिंग लेक्चर सर. बहुत अच्छा आपने तरीके से समझाया. बहुत अच्छा तरीका था सर आपका. Thank you so much. उसके लिए भी एक्स्ट्रा धन्यवाद आपका सर. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर. हाँ, thank you to all. Thank you to Sachin sir, and thank you sir, Arun sir, Rajesh sir, and our all attendees. We will intimate you next seminar is very soon. Thanks to attend. Good evening to all. Thank you. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग.